मोमेंटम कंजर्वेशन कब था और हमने स्टार्ट कैसे करा था? हमने बोला था यार हमारे पास दो मेजरली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेड ऑन कोलिजन, बट थोड़ा सा ओब्लिक कोलिजन का भी पार्ट है। तो हमने पहली चीज हेड ऑन और ओब्लिक में डिफरेंशिएट कैसे करा था कि अगर हमारे पास वहां पे हमने दो टर्म डिफाइन करे थे, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर दोनों के सेंटर को ज्वाइन करा जाए उसी डायरेक्शन में, अगर हमारी बॉल इनिशियली मूव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग तो हमेशा याद रखना है कि हेड ऑन का मतलब क्या है कि अगर इनिशियली हमारे पास किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉल्स मूव हो रही है विच इज लाइन ऑफ ज्वाइनिंग एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है, तो फाइनली भी उसी डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। ठीक है, अगर मुझे बेसिक लैंग्वेज में भी समझना है तो हमारे पास ये होगा। ओके यार, व्हाई माय वॉइस इज इकोइंग? अच्छा, ओके, यस, ओके। So basically, when we were talking about the head-on collision, when we have two balls, they are moving in a certain direction. If the line joining between the center and the line joining between the, sorry, not the line joining, the velocities are in the same direction. One more thing, these are the standard notation. The ball which is behind, the velocities in the that is defined as the first one. The right one is the second one. So m1 u1, m2 u2, and finally m1 is this. The final velocity of this is v1. This is m2 and this is v2. ठीक है, ये किया था। फिर what we studied about this कि whatever is happening in between there is a, अच्छा, exactly what is happening just before the collision, ball is about to come, उसके बाद the deformation starts happening. When the deformation starts happening, जब exactly they are in about contact, फिर maximum deformation वाला case in between, before this comes to this position, there is a maximum deformation where the both the balls move with the same velocity. This is the case for maximum deformation. अच्छा, ये सब हम कर चुके हैं। हम जस्ट क्विकली टेलिंग यू, अगर किसी को डाउट हो तो बोलना, है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। अगेन ball comes back to this, so from here to here and then here to here. In between also there are infinite stages, but we are majorly talking about these 3 or 4 stages. ये होता था, फिर हमने क्या बोला था, ये दिस इज m1, दिस इज m2 और फाइनली दिस इज m3. फॉर द कोलिजन टू हैपन, दिस वाज u1 हैज टू बी ग्रेटर देन u2, देन ओनली द ball which is behind will collide with the right one, and finally what will happen, final velocity will be greater than this. Whatever be the situation throughout the motion, the net momentum of system is conserved. Why? Whether or not they are in contact, the net force, the first ball, the force which first ball is applying on the second, by default Newton's third law, second ball will apply the same force on the first. So the, yes, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो प्लीज, अच्छा, अदरवाइज बंद ही रखना, माइक डिस्टरबेंस होगा। ओके, सो हाँ, so first thing that you have to understand is momentum has to be conserved, right? So pi is equal to pf, और फिर वहां पर what we studied, m1 u1 plus m2 u2 is equal to final velocities v1 plus v2. This was the one first equation that we can apply anywhere. You can apply in this stage also, where the maximum deformation is happening. For that instant, the velocity will be common for that instant only. And if, coming to the coefficient restitution wala part also, but this you can apply anywhere. Second thing is, whenever we are writing m1 u1 m2 u2, because this is the one straight line motion, all the directions will be considered in terms of plus and minus. Means if u1 and u2, if something is moving in the backward direction, please put a minus sign in that. Or v1 v2 normally we have to find out, but whatever be the sign, if you know, then put in the equation. Second thing is, I gave you the example of different things, that ball goes at a different heights, or when they strike two surfaces, depending upon the surface, final velocities are defined in that way, where the coefficient of restitution term comes, which is defined by A, and it was velocity of separation upon velocity of approach. It is a property of the material and it always varies from 0 to 1. 0 is the case, we say it is perfectly inelastic, where normally in the books it is written as that the final velocity of both becomes equal. Another way of asking the same thing is, in the oblique collision, it is the
along the line of impact, both the velocities to be equal. I'll discuss about this, but in general, understand when we talk about perfectly inelastic, the velocities along the line of impact has to be equal, and this is perfectly elastic. This we had discussed. Okay, quickly everyone, quickly turn on the cam, सब लोग जल्दी से. You have, अगर कोई बेड पे बैठा है यार 30 सेकेंड्स जल्दी से कैमरा चालू करो. अच्छा यार, ये बार बार बोलने वाला काम नहीं है ना. डोंट डोंट कि यार मैं हर बार तुमसे बोलूं और तब तुम चालू करोगे कैमरा, है ना. दिस इज योर, अब एक बार तुम्हें समझ में आ चुका है दैट यू आर सपोज टू डू दिस. चलो हाँ, यश आंखें खुल गई हैं. बिल्कुल ही आंखें बिल्कुल ही खोल लो यार. यार मैं तो यार मैं उठ जाता हूँ मतलब, लेकिन बट स्टिल प्लीज 7:30 का अलार्म मत लगाया करो. ठीक है, इफ द क्लास इज एट 7:30 प्लीज गेट अप बाय एटलीस्ट बाय हाफ एन आवर, एटलीस्ट बाय 45 मिनट्स. तब थोड़ा सा सही होगी जिंदगी, है ना. तुम उठ के बैठोगे ना, दिमाग काम ही नहीं करेगा. थोड़ा तो पहले उठा करो. करो 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 चालू. चलो चलो गुड. हाँ अच्छा ना. फील गुड फैक्टर नहीं होता तुम्हें कैमरा चालू करके. सब लोगों को देखो, हाई लो कर लो. किसी को तो मिस कर रहे होगे ना तुम. देख लो एक दूसरे में किसको किसकी याद आ रही थी तुम्हें. उस शायद शायद उसका चेहरा देख के तुम्हें मन करे पढ़ने का. अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रीति मैम प्लीज आप मॉनिटर कर लेना एक बार ये. एंड देन यार सबको चालू करना है मतलब जल्दी जल्दी जल्दी. we'll have to finish this chapter today. The issue with the camera. Okay. हो गया. Yeah. Okay. चलो. So, हाँ, तो ये this is all that we discussed. Is there by any chance in the term or in the symbol or anything, if you have doubt with, quickly tell me. So I'll just quickly explain before I come to the next part of this. So again, I'm repeating, when we normally say perfectly elastic word is very much clear. Last time also I told you, in like in SC Verma or in somewhere, na, they sometimes say forget to write this thing. Otherwise, in between what happens? In between all the collision in real life, every time it is neither the case of perfect zero, neither the case of perfect one. Sir, last time you told me, sir, आटे का बोले वो तो चिपक जाएगा. In a thing, there is if there is probably values, so there is nothing like zero. There is nothing like one. Every time it is something. Whenever is between inelastic collision. Okay, this is normally the word uses inelastic. If they want to write perfectly, they will write this. Again, this got disconnected. So in SC1 specifically, I'm telling you, sometimes they will use the word where the collision is elastic and inelastic, and you will get to see that you need the value of E and they had not given the value of E. Always remember, they want you to assume the collision to be perfectly elastic. I'm repeating. See, if there is a possibility that E has to, but not give it is required, then always remember they are assuming in their mind that you take the value of E to be 1. In general, E is between 0 and 1. Getting the idea? My voice is breaking. One second. एक मिनट यार. Just a second.
अभी ठीक हो गई है? कर देता हूँ चेंज यार। अच्छा अभी वो तो बताना। अरे चल लेट मी नो, अगर हो रहा तो मैं I'll change. Okay. So this is what I'm saying. So sometimes if you hear the word elastic and you think that you need the value of E to solve the problem, in their mind or in the problem, they are assuming it to be perfectly elastic. Normally, they would write the word perfectly inelastic and elastic. If nothing is mentioned and they are using the word the collision is elastic, just assume that it is to be perfectly inelastic. This is what I'm saying. Okay. ठीक है, अब आए प्रॉब्लम्स पे आते हैं थोड़े से। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट इज ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम, इफ नॉट दे वुड बी आस्किंग द वैल्यू। ठीक है, एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हेड ऑन एंड द oblique collision also. Whenever the ball is in contact, the common surface will be the tangent if they are the spherical ball. So the if this is the surface, the perpendicular to that surface normal reaction would occur. So normal reaction or basically the impulsive force that we are going to talk about. उसके अलावा क्या होगा, प्रैक्टिकली हमारे पास हमेशा कहीं पर भी फोर्सेस नहीं लगेंगे, सो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल द वेलोसिटीज विल रिमेन अनचेंज्ड, which is basically the oblique collision. आज अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं, एंड वी हैड लास्ट टाइम डिस्कस्ड आल्सो about the different type of impulsive and non-impulsive forces. I hope everyone remembers that. If I just quickly ask you another problem, suppose I have this ball, this, okay, there is another ball which is coming like this. Okay, quickly someone tell me which forces are impulsive and non-impulsive. Suppose there are three different cases of the ball. This is the first case, this is the second case, and this is the third case. This is the third case. Suppose ball is coming like this. In the second case, ball is coming like this and striking. In the third case, ball is coming like this. In which of the case tension is impulsive? In which of the case it is not? Or in tension is always impulsive. Certain is always non-impulsive. There are three different cases. I'm asking you in which of the case tension is impulsive and in which it is not. Just to feel impulsive, I told you best way to feel whether it is impulsive or not impulsive. बताओ. Tell me. In which of the case tension is impulsive? Yes. बता दो क्विकली. कुछ है नहीं ऐसा जिसको अगर एक बार माइक चालू करके बताना है तो क्विकली बता सकता है. Feel it. What I'm asking you, in which of the case tension is an impulsive force? जल्दी बताओ भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार. अच्छा, डोंट टेल मी ये चीज में फील नहीं हो पा रही है, या वी हैड डिस्कस कि इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव कैसे डिसाइड करते हैं. इट इज अगेन that job that you feel, that you are feeling. First case, it is impulsive or non-impulsive? What is in the first case? Impulsive. Okay. कोई और बताएगा? अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब part is right. Impulsive. No, it is right. Yeah, feel this thing. We had discussed about this. Suppose this ball is striking this, the bigger ball. When it is striking, what is happening? Just to feel where the forces are acting. This smaller ball will push this ball in this direction. The bigger ball will push the smaller ball in this. Smaller ball is free to move anywhere in the life. Yes, 100%. The problem with the bigger ball is that bigger ball can only move because of the string constraint. It can only go in the horizontal direction at t is equal to 0, or we can say it can go in the circular motion. Point is whether when this force is acting, which is the normal force, on the bigger ball, it will be having two components. One is this and one is this. Does
can this bigger ball go in the downward direction? No, no weight can go in the downward direction. So can I say this force, this impulsive force due to the normal reaction by the smaller ball on the bigger ball, this force definitely has to be balanced by something. Understand one more thing, impulsive force cannot be balanced by non-impulsive force. Remember this. If I'll say whether this integration n dt can be balanced by mg, never. Impulsive force can only balance another impulsive force. So this impulsive force, the jhatka that this bigger ball is feeling in the downward direction has to be balanced by something, and that something is n dt in the direction. So for example, the only direction where this force's tension is impulsive. What will happen to the horizontal? The horizontal direction will be impulsive. So if I say is this ball is allowed to move in the horizontal direction? Yes. Okay, let me ask. Change. One second. मैं change ही करूँगा. Now my voice is fine क्या? Hello. अभी सही आ रही है? Is it okay now? Okay. अरे थोड़े टाइम के लिए वो ओके पता नहीं यार. क्योंकि एक बार कैमरा बंद करते हैं तो उसके बाद अगर ऐसा हो रहा है कुछ. ओके सो बेसिकली इंटीग्रेशन टीडीटी आया. सो इन द फर्स्ट केस इट इज इंपल्सिव, इन द सेकंड केस द बिगर बॉल इज अलाउड टू मूव इन दैट डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली नहीं होगा. इन द थर्ड केस द स्ट्रिंग एक्चुअली वुड स्लैक. In the third case, the string would slack, so obviously 100% is not impulsive. Now everyone is getting, again when we are talking about the impulsive and non-impulsive thing, how to feel this. ठीक है ना? अब आते हैं इंटरेस्टिंग चीज पे, which is the head-on collision, which is the most important part of this collision. क्योंकि majorly this is what we are going to study. Okay, simplest one we had discussed. Can I say practically I have two equations and two unknown? What? Initial m1 is given, initial m2 is given. After collision, everything is happening. We'll have to find out the, and let's talk about the variation of the problem actually. So this is the whole situation: m1, u1, m2, u2, m1, v1, m2, and v2. Sorry, this is looking like u only. This is v1, v2. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus, I'm not giving you a simplest problem where I would give you m1, I'm giving you m2, I'm giving you u1 and u2, I'm giving you and asking you find out v1 and v2, and e is also there. So basically this is nothing but two equation, two unknown, you can solve it easily. So I'm not giving you that problem. But first quickly tell me, do you know this thing? If I'll give you all these things, we have two equations, two unknown, you can easily solve that. I hope that thing is clear to everyone, right? Tell me quickly. So let's talk about certain cases which you are supposed to remember. So first case that actually you should remember all these things, which is the simplest one, which is E is equal to 0. If I'm saying E is equal to 0 means it is a perfectly inelastic collision. Put the value of E is equal to 0 here. What you are seeing, V2 is equal to V1. Just remember this result. This is a very simple, sir. Why are you even telling this? Understand this thing. Whenever the perfectly inelastic collision is happening, finally both ball will stick together and they will go in the same direction. So sometimes people in their mind, they assume that whenever E is 0, हमेशा ball चिपक जाती है. It is chipcoing in this case whenever there is a head-on collision. In the oblique collision, even if E is 0, they won't stick together. So just remember, as of now, when we are applying this equation, एक चीज और याद रखना, whenever we are applying these equation, all the velocities uh, has to be taken
along impulse, along direction of impulse. So why I'm writing this? Impulse has a specific direction in which it would be acting. तो impulse की जो हमारे पास direction होगी, in that direction all the velocities will be taken. If it is not, so take the component of those velocities in that direction. Which direction? Where the impulse is acting. ठीक है. Second case is where I'm talking about E is equal to 1. So if I'll talk about E is equal to 1, actually I'll write the equation and solve it. There is one special case when E is equal to 1 and M1 is equal to M2. This is a very important case actually. It will keep on coming a lot. Remember, whenever there is a head-on collision and M1 and M2 are equal. Now I'm solving this case for you. Quickly see. Okay, if M1 and M2 are equal, from equation 1, everything will get cancelled and I'm getting U1 plus U2 is equal to V1 plus V2. Very simple. Okay, this is the first equation for me. If E is equal to 1, I'm putting E is equal to 1 here, and I'm getting U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. I just put E is equal to 1, multiplied this U1 minus U2 on the left hand side, and I'm getting this. What did I write? Just see it. I'm coming to the problems. If I'll add these, why I'm adding these? Because any which is I have to find out V1 and V2. ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूंगा इन दोनों को, देखो क्या रहा है, twice U1 is equal to what? Twice V2 means V2, the final velocity of the second ball is coming out to be equal to the initial velocity of the first ball. Just see this thing clearly. I have added these two equations. U2 is getting cancelled. So 2U1 is equal to 2V2 aa raha hai, which is equal to V2 is equal to U1. So final velocity of the second ball is coming out to be equal to the initial velocity of the first ball. And what is happening with the V1, final velocity of this one? So just to put V2 is equal to, in the first equation, let's I'm putting this. So U1 plus U2 is equal to V1, we have to find out. V2 we had figured out, it is coming out to be U1. U1 is getting cancelled. So this is a very interesting result actually comes. Now what you are supposed to remember, the final velocities of both the balls after collision is exactly coming out to be the initial velocity of the balls, but opposite ball. Means the velocity gets exchanged. Remember this thing. If it is a head-on collision, both ball, now the result is coming, both ball exchanges their velocity. And we are going to use this result a lot and directly. I hope this thing is clear. So what I'm saying is, I'll just giving you a quick example. Suppose this is the ball M, 4 meter per second. Another ball M, it does not matter in which direction they are moving. This is 3 meter per second. Head-on collision is given. E is equal to 1 is given. Without even solving, I would say this thing, that this M will find, they will exchange their velocity, not speed. I mean, like speed is also getting exchanged. Exchanging their velocity means their speed and direction both are getting interchanged. Means so finally this will go with 3 and this will go with 4. Quickly, everyone tell me, are you understanding this result, how we are going to use this? Tell me quickly. किसी को इस चीज में डाउट लग रहा है? हमने क्या किया, हमने अभी तक m1 m2 की वैल्यू नहीं डाली थी. सेकंड केस में इन जनरल आई हैड done this derivation and finally came to this result. Then I am going to directly use this result. किसी को ऐसा लग रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है? Anyone सर जल्दी से. वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम ही रहेगी ना, मतलब कोलिजन के बाद भी डायरेक्शन इंटरचेंज इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब वही, मतलब ये देखो इधर की फर्स्ट की लास्ट की मतलब डायरेक्शन भी सेम ही है, मतलब दोनों की वेलोसिटी पूरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे. फर्स्ट वाले की सेकंड में पहुंच जाएगी, सेकंड वाले की फर्स्ट में पहुंच हाँ. जाएगी. यस, एज सिंपल एज दैट, राइट. मतलब इवन अगर कोई बॉल रुकी हुई हो, मतलब अगर ये सपोज 2 मीटर पर सेकंड है एंड सेकंड बॉल इज एट रेस्ट. अच्छा, ये मैं ऊपर नीचे बना रहा हूँ. एज ऑफ नाउ डोंट अंडरस्टैंड कि अभी मैं ओब्लिक कोलिजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ. ओनली टॉकिंग अबाउट ये जस्ट ऊपर नीचे अगर बन भी रहा है. सपोज ये रुकी हुई है, तो फाइनली फर्स्ट वाली रुक जाएगी और सेकंड वाली जाने लगेगी 2 से. तो फर्स्ट वाले जो थी हमारे पास, जो 2 से जा रही थी, नाउ दिस वेलोसिटी विल बी 0 एंड दिस वेलोसिटी विल बी 2.
अगेन आई एम मेक श्योर, कई बार ना जल्दी में आई सीन दिस थिंग कि लोगों को ये रिजल्ट याद रहता है, दे फॉरगेट दिस थिंग दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेनेवर इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इफ E is equal to 1 is not there, then this is not going to happen. तो प्लीज वो, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है एक्चुअली, है ना, इट्स अ टाइम पास रिजल्ट. What people think, if it is a time pass result, only they would remember, oh, they exchange their velocity. They forget this thing, okay, it is only applicable when E is equal to 1. Clear? I'm coming to the problems, but यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? सर आपने फॉर्मूला के नीचे एक स्टेटमेंट लिखी थी ना, वो नहीं समझी. This one, nothing, both ball exchanges their velocity. ई वाले फॉर्मूला के नीचे लिखी है ना एक, all the ये, velocities along the direction of impulse. oh, okay, this is for the oblique collision. Normally na, in the books what is written na, what they write is, they write this thing when, actually, have you gotten this result, E is equal to 0? If I'm putting E is equal to 0 here, I'm getting V1 is equal to V2, right? Yes sir. In which direction this equation is to be applied? Okay, I'll give you an example. The last time मैंने एक सुंदर सा डायग्राम बनाया था, उसको कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा. ओब्लिक कोलिजन का एक डायग्राम बनाया था मैंने. दिस वन सेकंड, मैं बताता हूँ. We just copy this and come. Okay, यहाँ पे बस समझा रहा हूँ, अभी इसको हटा दूंगा, एक सेकंड रुकना. Okay, suppose, do you remember this diagram, oblique collision one? Yes sir. So now what is happening? Sometimes now what they write in the books, this is written that E is equal to 0, then finally write that it is finally every both the ball will stick together. Whenever they say it is a perfectly inelastic collision, they say that both balls sticks together. What I'm saying is, it is not always the case. Suppose this is the case of the oblique collision. Suppose this ball was going in this direction and this ball was at rest. Now what will happen? Eventually, if in this case, if E is 0, then the velocity which is in the direction of impulse is acting along the common normal. So suppose this angle is theta. So the first ball having two velocities, v1 cos theta, and this is like v1 sin theta. This v1 sin theta will be exactly same because there is no impulse acting in this direction. So finally what would happen? Finally, this is just before collision, this was the case. After collision, what will happen? After collision, just after, along the common normal, the velocities will be equal. This is if it is Vc, this will also be Vc, which is we were talking about just now, but this component will remain same. This thing, what I'm talking about. So along E is equal to 0 means along the common normal velocities will become equal. It does not mean that they will stick together. Because if I'm asking you this, so this component will remain unchanged. Why? Because along the common normal only velocities gets changed. So this component is, if it is same, so finally क्या ये दोनों exactly same साथ में move हो रही है? नहीं. M1 is having two velocities, Vc is here and V1 sin theta is there. So it will be going somewhere here. But this second ball is going here. So they are actually going in the different direction. They are not stick together. तो जो E वाली जो इक्वेशन होती है, we only apply the E का इक्वेशन along the direction of impulse. So all the velocities when I'm writing this, all the velocities is to be taken along the direction of impulse. अच्छा, थोड़ा सा और better लिखा, all the velocities, all the component of velocities, little better, all the component of velocities has to be taken along the direction of impulse. So all, when I'm writing v2 v1, these are the component of velocities of v1 and v2 along the direction of impulse. Now is it clear? Yes sir. So please remember, again I'm saying you'll get to see this thing whenever they will write again. Achha, this is only for the advanced, definitely they won't ask you in mains, or mains probably they might ask. Otherwise, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 95% of the problem that you get to see, they are based on head on. For those 5% of the problem, I'm telling you all these things. But conceptually, you should know. Conceptually, so they only might ask you this thing. That suppose it is an oblique collision. Finally, they might give you the option. Both the balls will move together. They go in the separate direction. This thing too can be asked anywhere. If it is not a calculated part, they might ask you. So again, I'm repeating, E is equal to 0. If it is a head-on collision, 100% they will move together with the same velocity. If it is a oblique collision, there is a possibility that, again, depending upon the problem, but जरूरी नहीं है कि वो साथ में move करें.
अभी समझ में आ रहा है? बढ़े आगे? बताओ 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 बताओ, पढ़े ना? मैं यार इसको हटा रहा हूँ, नहीं तो बीच में वो ऑब्स्ट्रक्शन सा लगेगा, ये कुछ और चीज बता दी है। Okay, so the next part is, so these are the two cases that you are supposed to remember. There is another case when we talk about, write like a third case, जहां पर क्या होता है कि एक बॉल बहुत हैवी होती है. सपोज फर्स्ट बॉल इज वेरी हैवी और probably the second ball is very heavy. When we say something is very heavy, we mean m1 is much greater than m2, or it could be vice versa, or probably the second ball is very heavy. Then in the calculation, what is the logic? We are, wherever I am getting m1 plus m2, I will write that thing as approximately m1, and whenever I'm getting m2 upon m1 in the calculation, I will approximately write that thing as 0. This is what we are going to use. अब देखो ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल मेरे पास, it is always this. So just see, if I divide the whole equation by m1, so here it is, I'm getting m1, here I'm getting as m2 upon m1. Okay, like this, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This was the equation. Suppose first ball is very heavy. This is the first ball. And second ball is very chintu. किसी का नाम चिंटू तो नहीं है ना? ऐसा हो सकता है. Okay, m1 and this. So if m1 is very heavy, practically we assume, actually if you'll solve it, you'll get the idea. But what I'm trying to say here is, I'm dividing the whole equation by m1. So m1, 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 m1. This is gayab. This is gayab. m2 upon m1 approximately I can write it as 0. So this is gone in 0. This is gone in 0. Sorry. What did I write? Here it is m1. Sorry, m1. So this is gone in 0. So I'm getting u1 as v1. So practically, if they are saying, so sometimes they will write a wall is moving towards you, whenever they are saying, or truck is moving towards you, and they had not given the mass of that particular object, you will assume the mass to be very heavy, and the logic of that, the velocity of that heavier mass will exactly remain unchanged, exactly remain the same. So m1 is still moving with the same velocity as initial. That's the whole thing that you are supposed to apply. What about, sir, what will happen to u2, the second velocity? That you can now directly apply. E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. अच्छा, अगेन एक चीज और मैंने यहाँ पे बताई थी. दिस थिंग ऑलवेज रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आल्सो in terms of that. So u1 I got, it is now, it is nothing but v2 is equal to what? It is e times u1 minus u2 and plus v1, and v1 we know already, it is coming out to be u1. I hope till here it is clear. जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अभी किसी को कुछ डाउट है? अभी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब बढ़िया अच्छे अच्छे टाइम पास प्रॉब्लम्स आते हैं और बेस्ड ऑन दिस. बट दीज आर 3 केसेस दैट इन योर माइंड should be very much clear. So when we are supposed to move the masses data, they will actually give you the something like a wall is moving towards a ball, or a truck is moving. Whenever it is not given, and if it feels like that it is a heavier object, it will actually come in the problem, and you'll get the idea. If mass is not given, means they want the mass to be either very light or to be very heavy. It, with the symbol you'll get the idea, with the word actually, truck or the wall, or earth is moving. So practically what is happening, where when I'm actually dropping a ball, it is striking with the earth, but we assume earth is still to be rest. Understand this. This is also a collision. Na? This we had studied multiple times. I'm coming to that also in terms of equation. We say, agar suppose m ball is going in the downward direction, striking with the ground, we say if it is elastic collision, we studied without knowing. Practically here, what we are assuming, the mass with which it is striking, it is much greater than m. That's why we say the earth initially is at rest, so finally also it is at rest. But it is again the case of collision only. ठीक है ना? अभी बोलो 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 बोलो, क्लियर है ना? ओके, अब आते हैं बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज, सपोज आई हैव 3 balls.
और हमने 2 बॉल के तो करे ही नहीं, 3 बॉल पे आ गए अब है, बिल्कुल टाइम पास का होगा, टोटली टाइम पास। ठीक है, 3 बॉल दी गई है एम, केवल ऐसे ही बताना है, बिना पेन चलाए। ये मूव कर रही है यू वेलोसिटी से और दोनों रुकी हुई है। एंड अगेन सारे कोलिजन लास्टिंग है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल। अच्छा, जो भी मुझे आंसर दे रहे हैं ना, कॉमा लिख के दे देना, फट से लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट बॉल है, सेकंड बॉल है, थर्ड बॉल है, सारे कोलिजन हो गए जितने भी होने थे। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल? ठीक है, हाँ यार, एक बाकी सब लोग भी यार, टेक 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा का प्रॉब्लम नहीं है अगर समझ में आया है तो। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम दिया है बस, ऐसा। प्लीज यार सब करना यार, मजा आएगा तुम्हें तभी, है ना, तभी तुम्हें चीज वो और वो फील भी होगा। एंड एक्चुअली यू सीन दिस थिंग हैपनिंग। अगर कोई स्नूकर स्नूकर खेला हो किसी ने, है ना, बोथ द बॉल्स आर प्रैक्टिकली, बॉल्स तो डेफिनेटली दे आर ऑफ द सेम साइज। एंड वो जो कोलिजन होता है ना, वो बहुत इलास्टिक होता है। अगर वो बिल्कुल ही हेड ऑन हो रहा है ना, अगर वो एक्चुअली, या अगर तुमने देखा होगा या वीडियो वीडियो देखे होंगे ना, कि जब वो स्टिक से मारते हैं, अगर वो सच में एग्जैक्टली हेड ऑन होता है ना, दूसरी वाली बॉल रुक जाती है। पीछे वाली बॉल आ रही है और ये रुक जाती है और ये एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से जाती है, बिकॉज ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ परफेक्टली इलास्टिक। वो बॉल्स आर डिजाइन, बहुत ही रिजिड बॉल होती है, तुमने अगर टच करा हो या फील करा हो, दे आर वेरी वेरी सॉलिड बॉल। वहां पे डिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। यस, व्हेन यू आर गिविंग मी द आंसर, क्वेश्चन मार्क का क्या है? यू शुड बी श्योर ना, यस राइट। यस एंड जूही, राइट। जूही, जीरो जीरो क्वेश्चन मार्क क्या लिखते हो? मतलब हाँ सही है ना आंसर, क्वेश्चन मार्क क्यों लिखना है? ओके, और लोग बताए यार, आ गए हैं 4-5 आंसर। अच्छा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, जिसको अभी भी डाउट हो ना, प्लीज इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान है कहानी ये वाली। तो व्हाट इज दैट, मैंने क्या बोला? इन बिटवीन क्या हो रहा होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इफ इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इफ E is given, first what will happen, these two will strike. Which one? First and the second one. First one will come to rest because they are exchanging their velocities. So just after the collision, first, second, first will come, first will come to rest. Yes, क्यों? Because ये second से टकरा रही है, second की velocity क्या है? Zero. This will start going in the right direction. तो ये हो जाएगी U. Now what will happen? 3 is here. 3 रेस्ट पे, यस बिल्कुल रेस्ट पे। जैसे इन दोनों का कोलिजन होगा, सेकंड रुक जाएगी और थर्ड वाली हमारी यू वेलोसिटी से जाने लगेगी। एनी डाउट? अच्छा, जिसको डाउट हो रहा है प्लीज पूछो 1 मिनट, है ना, सो दैट कि तुम आगे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, किसी को ऐसा लग रहा है यार, स्नूकर वाली चीज याद दिमाग में रख सकते हो कि यार मेरे पास 2 वेलोसिटीज, 2 बॉल एग्जैक्टली अगर हेड ऑन हो रहा है तो, है ना, अभी तुम वहां पे रियल लाइफ सिचुएशन में तुम अगर चले जाओगे फिर से कि सर वो तो कभी साइड से भी टकराती है तो बॉल इधर 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 जाती है, वो वाला केस भी हम आज ही देखेंगे, डोंट वरी। बट यहाँ वाले में अगर एग्जैक्टली हेड ऑन है, सो दे आर जस्ट चेंजिंग देयर वेलोसिटीज। इसमें कुछ भी कर सकते हैं यार, मतलब, है ना। अभी बताओ, व्हाट आर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ईच? 1 2 3 4। 1 is moving, 4 is moving like this. What are the final velocities of each? Okay, एक चीज और, अगर राइट वाली तो पॉजिटिव बोलना, लेफ्ट वाली तो नेगेटिव बोलना। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटीज, और क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है ना, केवल एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो तुम प्लस माइनस से आंसर दे सकते हो। तो व्हेन यू आर गिविंग मी द आंसर, तो अगर राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस लिख के आंसर देना। अगेन क्या, अच्छा, E इज इक्वल टू 1 दिया गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ E इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो। ये सच में पता है इतना ही टाइम लगना है वैसे तो आइडियली, मतलब आई गॉट 1 or 2 आंसर, बट लेकिन फिर भी इफ यू आर टेकिंग टाइम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट है ना, बट सोच के आंसर देना, मतलब ये मत करना कि हाँ बिल्कुल ही यू आर लीविंग, अच्छा अभी सर बताएंगे और हम नोट कर लेंगे। ऐसे मैं प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूँ पहले, हाँ। यार और लोग बताओ।
Let me just शिवम गलत भाई, वैष्णवी गलत। अच्छा गलत कैसे हो रहा है यार? अच्छा मैं लेट में नाम याद करता हूँ कुछ। कौस्तुभ बता दो चल। कौस्तुभ, नाउ यू आर सपोज्ड टू गिव मी द आंसर। सर सेकंड का यू होएगा और फिर थर्ड का भी, थर्ड का माइनस यू, हाँ और फिर सेकंड और थर्ड कोलाइड करेंगे तो फिर उनका एक दूसरे का यू हो जाएगा। यू हो जाएगा, यू मत, अच्छा दोनों का यू हो जाएगा। सर वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद भी कुछ होगा। दैट लास्ट थिंग दैट यू आर मिसिंग नाउ। सर फिर, हाँ फिर से 1 और 4 का फिर यू हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? ऑपोजिट डायरेक्शन। या वेरी गुड, है ना? तो यही तुम्हें जो जब तुमने आउट लाउड करा तब तुमने मुझे बताया, है ना? यही मेरा बिना पूछे भी तुम्हें बताना था। ओके, द पॉइंट इज यार, हाँ तो यार लॉजिक आई गेस नाउ यू आर गेटिंग। अब जिसके जिसके भी आंसर गलत आए ना, नाउ दिस इज राइट, दिस इज राइट। जिसके भी आंसर गलत है ना, तो किया क्या है, तुम बीच में भूल गए हो कि अभी आगे भी तो कोलिजन हो सकता है। कोलिजन होना कब बंद हो रहा है? कोलिजन होना तब बंद हो रहा है जब ये वाली कहानी हुई, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। अब थर्ड यहाँ है, फर्स्ट रुका हुआ है, सेकंड रुका हुआ है, तो अब ये यू टर्न लेके बॉल तो आएगी नहीं टू फॉर द कोलिजन। नाउ दिस इज द फाइनल थिंग। जिसने भी आंसर बीच में दिए ना, सो व्हाट फर्स्ट थिंग व्हाट इज हैपनिंग, मैं एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट इसकी जरूरत है नहीं, बट एक बार समझो कि हाउ इट इज हैपनिंग। इवेंचुअली जो हमने डिसाइड करा था ना, फाइनली वही हो रहा है। देखो, फर्स्ट और टू स्ट्राइक कर रहे हैं, यस। फर्स्ट रुक गया, ओके। यू जाने लगा क्योंकि सर अभी बोला कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ कोलाइड होते हुए दिख रहे हैं, यस। थर्ड और फोर्थ कोलाइड होंगे तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, ये हो जाएगा और फोर्थ रुक जाएगा। अच्छा, किसी को ये डाउट आ सकता है, मैं बिफोर यू आस्क मी, सर हाउ डू यू नो दैट फर्स्ट और सेकंड कोलाइड हो रहे हैं और सेकंड और थर्ड पहले कोलाइड नहीं हो पा रहे हैं और फोर्थ एंड थर्ड हो रहा है? इट डज नॉट मैटर। What I'm saying, it will actually depend upon the distance in between, कि who is colliding with whom first. But if even if you'll think कि suppose third और fourth के बीच का distance बहुत ज्यादा था, before fourth is able to strike on the third ball, second के पास u velocity आ गई और ये इससे strike कर गया, it won't matter at all. You can try that later, है ना? So now what I'm saying is first and fourth रुक चुके हैं, second and third move कर रहे हैं। अभी for sure second and third आपस में collide करेंगे। What will happen? Dot 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 dot. Okay, they will exchange their velocities, second and third. So second की वेलोसिटी थर्ड के पास आ गई, थर्ड की वेलोसिटी आ गई सेकंड के पास। क्या कोलिजन यहाँ पे रुक गया है? नहीं। एक्चुअली दो तीन लोगों ने ये वाला आंसर दिया है, ये वाला। अभी कोलिजन रुका नहीं है, अभी सेकंड इज अगेन विल स्ट्राइक विद द थर्ड फर्स्ट वन। जस्ट सी क्या ऐसा हो रहा है या मैं हो ही रहा है मतलब, है ना? तो सेकंड रुक जाएगा बिकॉज सेकंड और फर्स्ट के बीच का कोलिजन हो रहा है, तो ये यू से जाएगा फाइनली। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड रुक जाएगा और फोर्थ हमारा यू से जाएगा। बताओ, किसी को डाउट अभी भी लग रहा है तो प्लीज। सर हाँ, यस। सर इसमें 1 2 3 4 का मासेस सब सेम रहेगा ना? फिर से बोल। 1 2 3 4 सब बॉल का मास सेम रहेगा हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अभी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ तुम्हें पूछ लेना चाहिए था वैसे, लेकिन हाँ सबका मास सेम है, नहीं गिवन है तो सेम ही मानो, यस। तभी होगा ये काम, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, क्या मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि इवेंचुअली वट एवर इज हैपनिंग इन बिटवीन, फाइनली कैन आई गिव फोर्थ का वेलोसिटी टू द फर्स्ट एंड फर्स्ट का वेलोसिटी टू द फोर्थ? क्या मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ क्या? और नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, व्हाट आई एम आस्किंग, सपोज मैं इस प्रॉब्लम में ये चेंज कर देता, ये यू था और ये टू यू था, सपोज मैं ये चेंज कर देता और मैं तुमसे पूछता अब बताओ फाइनल वेलोसिटीज, क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ क्या फाइनली वन विल स्टार्ट गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद टू यू एंड फोर्थ विल स्टार्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी यू? प्लीज टेल मी। क्या ये मैं हमेशा मतलब क्या मैं इतनी मेहनत करूं ये तीनों स्टेप में खा सकता हूँ और डायरेक्टली कैन आई कम टू दिस फाइनल कंक्लूजन? Aishkar, you'll have to tell me the reason if you are saying yes.
or whosoever is telling me yes or no, please give me the reason for this. Again, E is given as 1, all the masses are same. बताओ बताओ बताओ, कौन बताना चाहेगा ये? Can I directly say this thing or no? सर इसमें प्रॉब्लम है कुछ. सर वेलोसिटीज एक्सचेंज होते जाएंगे और फिर आखिरी में तो डायरेक्ट एक्सचेंज कर ही पाएंगे ना हम, जैसे इस केस में किया हमने. सेम कहानी तुम कर भी लोगे ना. एग्जैक्टली, वेलोसिटीज एक्सचेंज होती जा रही ना इवेंचुअली. और कोलिजन कब बंद हो रहा है? व्हेन एवरी कोलिजन इज हैपनिंग, व्हाटएवर इज देयर, सब कुछ फाइनली अगर होगा तो वेलोसिटीज एक्सचेंज जो होंगी, यू कैन डायरेक्टली से दिस इज टू यू एंड राइट वाला इज यू, कैन डायरेक्टली वेरी वेल अप्लाई दिस थिंग. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, है ना? सो प्लीज याद रखना. बट सर मोशन कैन बी वेरी स्लो ड्यू टू द कोलिजन टू पास द, we are not talking about the duration of how much time. This is the impulsive force. So when it asks, the motion can be very slow due to the collision to pass the velocity. Velocity is not passing, it is happening because impulsive force is there and it is doing its work. It is the redistribution. Understand, collision is nothing but a redistribution of momentum. डाउट क्या एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा, हाँ अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट लेकिन हाँ इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्पल्स इज कमिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्लो और हाउ फास्ट इट इज हैपनिंग. ओके, सपोज दिस इज m, another problem, this is 2m. Now this m is moving with the velocity 2v and this 2m is moving with the velocity v. You will have to tell me two things. Find final velocity of both, final velocity of both the balls, and what? Fraction of kinetic energy loss. There is a new term that is coming, fraction of kinetic energy lost during collision. During collision. अच्छा, हमको बोला गया this collision is elastic. Elastic, अच्छा, okay, perfectly elastic. Perfectly elastic. Okay, if it is not written as perfectly, then also you are supposed to assume as E is equal to 1. Why I'm saying this? Because if they have not given and they are asking, you should know the value of E. Either it is 0, 1, 2, whatever. You know, so if it is not given and they are only writing elastic, assume it to be perfectly elastic. Okay. Final velocity बतानी है दोनों की and fraction of kinetic energy lost during the collision. Take आराम से take your time and think. Okay. This is right.
ओके, क्या सबने ट्राई करा एक बार? और किसी, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और टाइम लो, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर आराम से. Mean try to write down the simple equation. What is simple equation? Momentum conservation and coefficient of restitution. हमने और कोई इक्वेशन पढ़ी नहीं है, यही दो इक्वेशन पढ़ी है. You'll have to write down the equation as momentum conservation क्या है या फिर E का equation क्या है. That's when you will get the relation between V1 and V2 in terms of two equation. You'll have to solve that. जी सभी गलत है भी. अच्छा, Nikita, I guess your answer is right. You're just not giving me the with the sign. Sujesh, this is wrong. Sign matlab again, if a particular ball is going in the backward direction, so put minus sign there. Otherwise, ना वो पता नहीं चलेगा. So, but value wise, it is fine. अच्छा अच्छा, एक प्रॉब्लम और मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, उसके बाद अगले प्रॉब्लम पे चलना. चल, अभी केवल आई गॉट ओनली वन राइट आंसर. एक बार अच्छा स्क्रीन पे देखो ध्यान से. नॉर्मली ना एक एक जो इन जनरल जेन्युइन सा कंफ्यूजन होता है ना, हम किसको U1 U2 V1 V2 ये सब जो लिखने वाली कहानी होती है ना, दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग समटाइम्स और पीपल फॉरगेट दिस थिंग. आइदर यू रिमेंबर लेफ्ट वाली जो बॉल है उसको हम M1 बोलते हैं और उसके वेलोसिटी को हम U1 बोलते हैं. द राइट बॉल mass we treat it as M2 and finally it is initial velocity is U2. After collision what is happening? Okay, whatever you are comfortable, I'll tell you. जो तुम्हारा मन है. It is any which ways it is M, any which ways it is 2M. ठीक है, एक बार quickly everyone please see on the screen how to apply. Even if you are forgetting किसको हमने V1 V2 और forgetting the formula, understand how I'm applying this. This is M, this is okay. Any which ways we'll have to find out the, we'll have to assign the symbol. Assume जो तुम्हारा मन है वो असाइन कर लो. इट डज नॉट मैटर. नॉर्मली आई नो पीछे वाली बॉल को फर्स्ट बोल रहे हो तो मैं इसको V1 लिख रहा हूँ. इफ यू आस्क मी टू राइट सर इसको V2 लिखो और इसको V1 लिखो, आई कैन डू दैट. बट अंडरस्टैंड हाउ आई एम राइटिंग. I'm just because here it is 1, so I'm writing V1. So this is after collision, this is happening. And this is before any which ways it is given. So what is the first thing that I'm applying? Initial momentum is equal to final momentum. Can I apply everywhere? Yes, without even a second thought. So first, initial momentum. Left ball is going in the right direction with velocity V, 2V. So M into 2V, but again it is plus. The right ball, whose mass is 2M, but it is going in the backward direction with the velocity V. So first understand that this minus is super important. You cannot miss this minus. Second ball momentum is minus 2mv because it is going in the backward direction, is equal to final momentum. Am I, so why I have assumed both the velocities to be in the same direction? Do I know? I don't know. If it will come out to be positive, V1 and V2 will come out to be positive, तो वो हमारा जो हमने साइन माना है वो सही है. If suppose V2 comes out to be negative, suppose, then whatever the sign of V2 I have assumed, वो exactly उसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, so okay, so क्योंकि लिखने में ना अगर V1 V2 मैंने आगे माने, so the whole idea is कि when I'm writing the equation I don't need to think about the sign because I had assumed both to be in the positive x direction. So I will write mv1 plus 2mv2. पहले मुझे सब लोग ये बताओ, इस इक्वेशन में किसी को डाउट हो रहा है कि मैंने ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैसे लिखा है? किसी को डाउट हो रहा है तो वो पूछना बस जल्दी से. आई होप क्लियर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पर क्या लिखा है? +2mv और ये लिखा है -2mv. ये तो जीरो में गया. ओ, मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो है. यस, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज जीरो. प्लीज इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि V1 और V2 भी जीरो आएंगे. They are coming towards each other. This is what I'm saying. The final momentum is conserved. Does not mean initial momentum zero है.
इसका मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम जीरो है, डज नॉट मीन v1 और v2 हमारे पास जीरो होंगे। वी कैन सी ना, हमें तो पता ही नहीं ना, हम तो सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, m is going in zero, so I'm getting first equation as v1 plus twice v2 is equal to zero. This is my first equation. Second equation कहाँ से आएगी? E का equation. What is the E का equation? अच्छा, now the problem is either you remember that E का equation, it is v2 minus v1 upon u1 minus u2. Then make sure what is your v1 and v2. It has to be exactly same जैसे मैंने लिखे हैं. Or again, how I prefer to remember this equation, I prefer to remember it is nothing but velocity of separation upon velocity of approach. Velocity of separation upon velocity of approach. Okay. Velocity of separation, last time भी मैंने बताया था. अच्छा, E is given as 1. Separation, how, with what velocities they are going away from each other. समझना. मेरे पास एक गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक और दूसरी गाड़ी है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है बट 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है. इफ वन इज मूविंग, मैं बार बार हिंदी पे आ जा रहा हूँ, है ना, प्लीज बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट बॉल is going with the velocity 5 meter per second, second ball is going with the velocity 10 meter per second. With what velocities they are separating with each other? Can I say it is 5 meter per second? So, and any which ways I know, the symbol that I had taken, this I'm taking as v2, this I'm taking as v1. For sure, v2 has to be greater than v1. Then only they are separating with each other. If the velocity of the previous ball is higher, suppose if v1 is higher, then actually the distance between them is reducing because left one is coming at a higher speed compared to the right one, which is still going in the right direction. I hope this basic idea is getting clear, right? It is same thing as if you are chasing someone. Suppose your friend is running in front of you and you want to chase your friend or you want to beat your friend. Obviously, you'll have to move at a higher speed. That's only when the distance will start reducing. So velocity of separation is what? v2 minus v1. Understand the terminology. Upon velocity of approach is what? The velocity with which the distance between them is rate at which the distance between them is reducing. If so, see in this case, this is 2v, this is v. दो दोस्त एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, they want to hug each other, whatever, है ना. तो अगर एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, so the rate at which they are, the distance between them is reducing, that will be their velocity of approach. So either I will write 2v minus of minus v, but I know if they are approaching towards each other, then can I directly write 3v? Understand how I'm writing these, and this is important. Velocity of separation, what does this mean? Velocity of approach, what does this mean? And how I'm directly writing this. किसी को इस चीज में डाउट है क्या तो प्लीज पहले बोलो. This is important thing. Otherwise you'll get confused sometimes because symbols are very weird. Or again I'm saying, or remember m1 u1 m2 u2, and then put the value of u2 as minus v. नीचे the denominator formula was otherwise what? It was v2 minus v1 upon u1 minus u2. See, अगर मैं जो फॉर्मूला भी याद अच्छे से, then also I can very well apply. So for me u1 is what? Plus 2v minus u2 is, for me it is minus v. Any which ways it will come out to be the same. It's just another way of thinking the same thing. Okay, so from this, the equation which I'm getting is v2 minus v1 is equal to 3v. I just multiplied this. This is my second equation. What I want to find out the value of v1 and v2. क्या करूं? दोनों को ऐड कर दो. v1 और v1 कैंसिल हो गया. Here I'm getting as 3v2 is equal to 3v. So I'm getting v2 as v. So means the velocity of the right ball, which is 2m, it is finally moving with the velocity v. Second one. So if I'm getting this, so what is my put anywhere? So put the value of v here in this equation. So instead of v2, I'm writing v minus v1. We have to find out it is 3v. So can I say I'm getting v1 as minus of 2v? Oh, look, this go on the right side, it will be 2v and putting the minus sign. So now v1 I had assumed, the left ball I have assumed this was going in the right direction with the velocity v1. Now my answer that I'm getting is as minus 2v, means finally m is moving towards the left direction with the velocity 2v. बताओ, is that thing getting clear to everyone? किसी को डाउट हो रहा है प्लीज अभी पूछो.
सामने देखो, पूरी चीजें लिखी है तुम्हारे सामने इज्जत से. Just see how did I write this equation, how did I write this equation, which is, यार उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट है वो तो कर ही लोगे तुम, ठीक है. मेरा जॉब इज टू make you understand these two equations. And the last one is the final velocity of v1 is coming out to be negative. This negative is telling me the direction which I had assumed initially is wrong. है ना? You just have to do that. You don't have to do the calculation again. You just have to just finally the m ball is going in the left direction with 2. बताओ बताओ बताओ, किसी को लग रहा है क्या? प्लीज आराम से देखो. लग रहा है किसी को ऐसा कि अभी नहीं समझ में आया सर? बताना पड़ेगा भाई. गाइस. सर स्टार्टिंग में आपने सिर्फ अज्यूम किया ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हाँ. करेंगे. यस, मैंने अज्यूम किया. क्यों अज्यूम किया, उसका रीजन क्या बताया मैंने, बताओ. क्योंकि हमें ही नहीं मालूम हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली, क्योंकि हमें ही नहीं मालूम यार कि कहाँ जाएंगे, हमें कैसे मालूम होगा. और तो सर आपने अगर जब हमें नहीं मालूम तो आपने दोनों सेम क्यों मान लिया, ऑपोजिट कर लेते. दिस इज माय हैबिट ऑफ डूइंग कि यार मुझे ना दिमाग नहीं लगाना होता है. मैं यहाँ पे ना बिना सोचे समझे लेफ्ट और राइट माइनस नहीं करना चाहता. अगर इफ आई एम अज्यूमिंग बोथ द थिंग्स टू बी इन द राइट, अगर इफ आई अज्यूम बोथ द थिंग्स टू बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन, आई हैव टू पुट माइनस हियर. आई डोंट लाइक, आई प्रेफर प्लस साइन बेटर देन माइनस. दैट्स द ओनली रीजन. इफ यू वांट, you do your calculation, put, assume both the balls are moving in the left direction. This is minus v1, this is minus v2, and do the calculation again. You will find your answer to be the same finally. है ना? क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम है, so the easier thing to assume both the balls are moving in the right direction. This is my way of thought. If you want, if someone wants कि नहीं मुझे सर लेफ्ट में करना है, then please make sure that you are putting minus sign here and minus sign here. किसी को और डाउट अभी यहाँ पे? आराम से बिल्कुल देखो. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट नहीं है ना? कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. ओके, द सेकंड थिंग इज, देन read this word carefully. Fraction of kinetic energy loss. Okay, whenever nothing is mentioned, it is always the total kinetic energy. यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, but whenever they are talking about fraction of kinetic energy loss, इसका मतलब क्या होता है? जो kinetic energy में जो difference आया है upon initial kinetic energy. फ्रैक्शन का मतलब इज ऑलवेज कि मेरे पास 100 रुपए हैं, किसी ने मुझसे 20 रुपए ले लिए, तो मेरे पास बचे किससे कितने? 100 थे मेरे पास, समवन हैड टेकन 20 अपॉन 100. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ समथिंग. तो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले, अच्छा, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा के मींस के फाइनल माइनस के इनिशियल, बट वी नो, अच्छा, इन दिस केस इट इज एक्चुअली वे टू सिंपलर. Okay, yes, in this case it is 0. The reason is, okay, मैं but एक बार निकालना चाह रहा हूँ. What is the initial kinetic energy of the system? Can I say it is half? The left ball mass is m and it is moving with the velocity 2v. The right ball, it mass is 2m and it is moving with the velocity v in the left direction. Kinetic energy, does it differentiate between if the ball is moving left or right? No, because it is always the speed ka square. So if the right ball is moving in the left direction with the speed v, so kinetic energy is this. K final. Finally, what is happening? Half left ball, which is m, it is moving with the speed 2v. So half m 2v square plus right ball, which is whose mass is 2m, it is moving with the speed v. So half m v square. Just see these things that you will get this. Here the term which I'm getting, half, here I'm getting 4 upon 2. So I'm getting 2 plus 1. 2 upon 2. Here I'm getting 4 upon 2 is 2 and 2 and 2 this one. Can you see both the exactly it is coming out to be the same? And this actually in the last class I told you also. Whenever it is a perfectly elastic collision, this is the case where there is no loss in energy. But I wanted to show you, that's why I had written. Otherwise, whenever, remember this. So whenever there is a perfectly elastic collision, then there is no energy loss. I can directly say the kinetic energy initial and final has to be equal. Clear है? ये बात समझ में आ रही है क्या? If not, if there is something like E is equal to half, then actually you'll have to find out the final velocity. You'll have to find out the initial velocity, final velocity, and then difference. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, when we talk about the final fraction ना, remember this, it is KEI minus KEF upon KEI. एक चीज और, why I'm saying this, because
here energy is getting lost, means the final kinetic energy is lesser compared to the initial kinetic energy. That's how the energy is being lost. So the fraction when we talk about, so it is like this. क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? So that you would be able to solve the next problem. अगर नहीं आएगा तो फिर से you'll wait for me to solve it. किसी भी पार्ट में दिक्कत है, किसी भी लैंग्वेज पार्ट में दिक्कत है, सर मेजरली जो मैंने हाईलाइट करा है ना, द येलो वाला जो हाईलाइट करा है, ओनली थिंक अबाउट दैट पार्ट, अगर उसमें दिक्कत तो बाकी कैलकुलेशन डिपेंड कितना जल्दी कर सकते हो तुम. डाउट इफ यू आर सेइंग नो डाउट, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि तुम, लेट मी सी यू गाइस. एक तो इस स्क्रीन पे सबको सबको एक साथ कैसे दिखते हैं हम पढ़ाते कैसे? ओके सो द तो पॉइंट इधर इज, जीरो होगा ना सर, मतलब यहाँ आंसर पे तो जीरो होगा शून्य क्योंकि, होगा। हाँ क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, जस्ट मैंने तुम्हें एक बार दिखाने के लिए लिखा है. बट अगर E1 है तो मैं डायरेक्टली जीरो बोल सकता था, तो जस्ट एक बार बताना था. अदरवाइज कभी भी आ रहा है E1 है तो यू कैन डायरेक्टली से देयर इज नो एनर्जी. ठीक है, पढ़े आगे. सामने तुम्हारे सवाल लिखा है, बिल्कुल ही क्लोज है, बस थोड़ा सा नीचे लग रहा है, थोड़ा सा सुंदर दिख जाए तुम्हें बस. बस ओके. सो द प्रॉब्लम फॉर यू इज, क्या गिवन है? अ बॉल ऑफ मास एम. अच्छा सर ऐसा कुछ लिखा रहता है, दैट्स हाउ दे विल राइट. अ बॉल ऑफ मास एम इज मूविंग विद द स्पीड v, मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अनदर बॉल व्हिच इज एट रेस्ट. ठीक है, हमको बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल. फाइंड e, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन बताओ. अनदर सेम बॉल, अनदर आइडेंटिकल बॉल, क्योंकि या तो बॉल का मास दूं या फिर मैं बोलूं दोनों सेम. अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट. ओके, पहली चीज सब लोग एक बार ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल. तो देन डेफिनेटली आई कैन से कि E इज नॉट 1 बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. ठीक है, अब नाउ यू हैव टू टेल मी फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सच में कुछ भी बहुत मेजर नहीं है ना. इक्वेशन के बाद ऑब्वियसली कैलकुलेशन हो सकती है, बट इक्वेशन लिखना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. प्लीज एवरीवन ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन, इवन इफ समवन इज गिविंग मी द आंसर, है ना. तो वो कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है किसी की, बट यार इक्वेशन हैज टू बी. ये इक्वेशन सर आपने बताई कौन सी है? एक एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक ई का इक्वेशन, और काइनेटिक एनर्जी तो लिखना हमें आता ही है कि इनिशियल टोटल. अच्छा, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, दोनों बॉल्स की बात हो रही है. डोंट डू दिस थिंग कि यार यू आर मिसिंग आउट अनलेस स्पेसिफाइड कि फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल. अच्छा, सब लोग नोट करते ही जा रहे हो ना ये ऊपर वाला स्क्रीन, अगर नहीं किए. कौन बताएगा, कौन बताएगा?
किसको पकड़ोगे? कोई वॉलंटियरली मुझे 1 मिनट देखो, तुम अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो तुम पे नजर ज्यादा जाएगी मेरी। यार ये बाकी लोगों ने कैमरा क्यों नहीं चालू करा हुआ है वैसे? प्लीज डोंट। यार सब लोग सबको, ये कोई वो थोड़ा है कि यार तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ये। आज तुम्हारे घर पे फोन पहुंचवाते हैं। यशस्वी, स्क्रीन पे देखने पे आंसर आएगा क्या? बताओ बताओ बताओ, कौन रहेगा, कौन बताएगा? किसके चेहरे से लग रहा है कि आंसर बताने का मन हो रहा है किसी का? Hmm, ओमकार, वेयर आर यू? हाउ कैन आई सी यू? अच्छा, अब ये आंसर गलत है वैसे। अब वेयर आर यू? हु वांट्स टू एक्सप्लेन? ओमकार, अच्छा बता तूने किया क्या है? चल, टेल मी। टर्न ऑन योर माइक, वेयर आर यू, सो दैट आई विल आल्सो गेट टू सी यू। तो यस, आई गेस आई कैन सी नाउ, राइट? हाँ, सर आई पुट यू मैंने ऑन। एनर्जी कंजर्वेशन का ये लगाया फॉर्मूला। एक मिनट, एनर्जी कंजर्वेशन का जैसे ही फॉर्मूला तूने लगाया, कंजर्व करी नहीं, फॉर्मूला लगाया, ओके हाँ। तो तूने अच्छा पहले फर्स्ट, अच्छा यार आई कैन डू दिस थिंग आल्सो ना, सो दैट एवरीवन कैन सी यू विद सम ऑप्शन। वन सेकंड, कैन एवरीवन रिमूव द ऑल पिन वीडियोस? पता नहीं यार, ओके लीव इट, ओके सब लोग ढूंढ लो ओमकार को एंड सी व्हाट। हाँ ओमकार बताओ, सो व्हाट एग्जैक्टली, टेल मी क्विकली कि किसको तुमने V1 माना है, V2 माना है, सो दैट बेसिक आइडिया सबको समझ में आए कि हाँ लेट्स हाउ टू गो अबाउट इट, ओके। किसको मैं फाइनली V1 V2 मानूं, वट एवर यू फील लाइक। मैंने V1 को 0 माना, जो नहीं नहीं, V1 कौन सा है तुम्हारा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। ओके, तुमने इसको फाइनली V1 माना, ओके, डज नॉट मैटर किसको तुम मान रहे हो, हाँ अब तुम। अच्छा एक मिनट, पहले तुम मुझे बताओ, तुमने बोला V1 को 0 माना, क्यों है? ये कहीं बोला है क्या मैंने कि V1 0 है? नहीं नहीं, माना कैसे मतलब, हाँ टेल मी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सर पर क्योंकि एनर्जी मतलब ये एक्सचेंज होगा ना सेम मास है इसके लिए। हाँ, इसलिए मैं बोला था ये गलती करते ही, देखा देखा देखा, सब लोग देख लो, सब लोग देख लो, यही नहीं करना है, ओके। एक्सचेंज कब होती है प्लीज? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? E इज इक्वल टू 1 होना इज द प्राइमरी कंडीशन, तभी एनर्जी हमारे पास वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। और अगर E1 है तो एनर्जी वैसे ही लॉस नहीं हो रही है भाई, समझो बात को। अगर एनर्जी यहाँ, अच्छा एक मिनट, ओमकार पहले बता मुझे, ये बता कि यहाँ 3/4 ऑफ द ओरिजिनल है, मतलब एनर्जी कुछ तो गायब हो गई, 1/4 ऑफ द एनर्जी जो मेरे पास थी वो लॉस हो गई है। एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो E1 हो ही नहीं सकता। देख E1 में नो एनर्जी लॉस, E इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम एनर्जी लॉस, बीच में कहीं समवेयर इन बिटवीन कहानी चल रही है। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या? अच्छा अब मुझे तो, अच्छा तो अभी यहाँ पे कहानी, कोई अभी इसको करेक्ट करना चाहेगा तो तूने, अच्छा यहाँ पर V1 0 मान लिया तूने, वैसे ही गड़बड़ होगी, ओके।
कोई अब इस चीज को आगे करेक्ट करना चाहता है, कैसे करें अब? सर फिर यस, kinetic energy half mv square is equal to 3/4 half m1 वेयर आर v1. यू? एक मिनट, हाँ आई कैन सी नाउ, यस, हाँ बोल। हाँ, in half mv square is equal to 3/4 half m1 v1 square plus half m2 m. हाँ, उल्टा उल्टा उल्टा। जब when you are saying 3/4 of the original ना, you are saying exactly ulta. What you are saying, half m m1 v1 square means दोनों का मास नहीं which is same है, half m this is square. You are multiplying 3/4 in this, right? Is Yes. equal to, you are saying this, understand? So indirectly तुम क्या बोल रहे हो कि जो फाइनल एनर्जी है वो ज्यादा हो गई, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कम एनर्जी दी सिस्टम को, मेरे पास ज्यादा तो आएगी नहीं। इनडायरेक्टली अगर मैं इस 3/4 जो तुमने राइट में लिखा है, इफ आई ट्राई टू मल्टीप्लाई, कैन आई से हियर इट विल बी 4/3। मैं गलती बता रहा हूँ, एक बार प्लीज समझना ध्यान से। मीन्स फाइनल एनर्जी यू आर टेलिंग मी दैट इट हैज ग्रेटर देन ओरिजिनल एनर्जी से ज्यादा हो गई, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ फैक्टर ऑफ 4/3। ये चीज समझ में आ रही है? ओके, मैं तो केवल यार इंग्लिश लैंग्वेज पे जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, यार व्हाट दे हैड सीन, kinetic energy of the balls after collision. This is my kinetic energy of the balls after collision. It is become 3/4 of the original. Original is this, uska 3/4. Again, I'm repeating my statement. Kinetic energy of the balls after collision is how much? मुझे नहीं पता। लेफ्ट वाले की v1 v2 total energy, kinetic energy of the balls after collision is equal to 3/4 of the original. बताओ बताओ बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या अभी? जो गलती हो रही थी शायद, whatever. क्लियर है क्या ये? Yes sir. अच्छा, तो so first equation for me is this. What about the second equation? अब क्या करें? Sir, u is equal to v1 plus v2. Yes, okay. So initial momentum दुनिया में हमेशा कंजर्व है, yes. Initial momentum of the system m into v, second ball तो रुकी हुई है. Final momentum is m into v1 plus m into v2. Why I'm saying this? Because I had assumed both the balls to be going in the right direction. गायब गायब गायब. So I'm getting second equation. V is equal to v1 plus v2. Now the problem is not to be precisely not the problem. When we have to find out E, because this is what we have to find out, coefficient of restitution. अच्छा, someone giving me the answer as 4/3 यार, 5/3 नहीं है, अच्छा तुमने गलती करी बोली है ना। So final answer is what? Velocity of separation upon approach separation. Finally v2 has to go with the greater speed so that obviously collision now. So velocity of separation is v2 minus v1 upon velocity of approach. One ball is at rest, the second is coming towards that ball with the velocity v. So can I say this is my actually my answer? So this, how can this be the answer? Now, what you have to do is practically you have to find out the velocity of v2 and v1 in terms of v, such that वो v और v cancel हो जाए, you will get a definite answer. Again, I'm repeating, this is my final E. What you have to do, you'll have to find out v2 and v1 in terms of the initial velocity, such that as soon as I put that v2 and v1 in the original equation, the equation of restitution, that will get cancelled. How to go about it? Now this is the part where you'll have to do little manual. Why? Because there is something like a square here. So first thing that is cancelled, usko to cancel hi kar do. Half is getting cancelled. M is getting cancelled. As soon as you will put the value of, यार अब ये मैथ्स है, to be honest. मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ how to solve it. Left hand side here it is written as 3/4 v square. On the right hand side, it is written as v1 square plus v2 square. Instead of v2, I can write v minus v1. And because it is a square, so write it like this. So here, as soon as you'll open this square, you'll get v1 square plus a square plus b square minus 2ab is equal to this. So take this v square on the left hand side or take this thing whole on the right hand side. So I'm getting this v1 square as 2v1 square minus 2v v1 and v square minus 3/4. So plus v square by 4 is equal to 0 multiplied by I guess 4, and I think you should get something.
So here I'm getting 8v1 square minus 8vv1 plus v square is equal to 0. And अच्छा ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, 8 तो आ ही नहीं सकता ना, 4 and 2, 4 and 2 से 8 आएगा क्या? नहीं आएगा शायद ना। ये तो बड़ी मेहनत हो जाएगी सर हाँ। डायरेक्ट उसको स्क्वायर करके और फिर फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करके यू स्क्वायर और v1 v2 में रिलेशन ला सकते हैं। एक मिनट, इसको स्क्वायर करके हाँ और फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v1 और v2 में एक रिलेशन आएगा। यस, हाँ उससे क्या करेंगे? v1 इंटू v2 में एक रिलेशन आएगा, फिर उसको e के फॉर्मूला को भी स्क्वायर कर दिया तो। हाँ, वो उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। अच्छा, डू वन थिंग, आई थिंक बेटर वेज टू सॉल्व दिस इज जस्ट सी, हियर आई एम गेटिंग एज v2 माइनस v1। अच्छा वो मैथ्स है, जैसे भी तुम्हें करना हो, v2 माइनस v1 एज e into v and I'm getting v1 plus v2 as this. So I can find out, okay, so I'm writing here also v1 plus v2 as v. Add these two equations quickly. So I'm getting twice v1 is twice v2. Adding these two equations, I'm getting as v times 1 plus e. So v2 I got as, I'm getting as 1 plus e divided by 2. Similarly, v1 now easily I can get. v1 I'm getting as v minus v2. So it is v1 as v minus v2. v2 as v 1 plus e upon 2. एक बार लिख लेना अभी, बट एक बार देख लो पहले। सो ये 2v आ रहा है, 2v minus v is basically v and minus e into v divided by 2. So v1 and v2 I already got in terms of what? V and e. So put this value and this value of v1 in the energy equation, which is this equation. So which is 3 by 4 v square is equal to v1 square plus v2 square. Put this value of v here, v2 here, put this value of v1 here, you'll get a quadratic equation in E, because v square will get cancelled because everywhere it is v square, and you'll get a quadratic equation in E. Find the value of E. कैसे भी करो मतलब, but the point is how to go about it. अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, ज्यादा हो गया. So I guess this is a better way of solving this. I'm removing this part. There is no actually it is more mehnat if you'll solve by this. So mathematically how you are approaching is a different story. Point is to write down the equation is important because it depends upon what exactly the numbers that are given to us. So point is I had got this equation, this equation and this equation is important. बोलो समझ आ रहा है क्या अभी ये वाली चीज? How I'm writing the equation and how to use the kinetic energy. So that's why normally na kinetic energy, whenever it is coming, there is something like v square term would come, and because of that v square term ना वो कहीं ना quadratic equation जैसा कुछ बनने लगता है. That's why it is little bit more mathematical. बताओ 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 बताओ, अभी क्लियर हो रहा है? बढ़िया, आगे another different type of problem पे. Okay. Next problem for you is, suppose I have one 2 kg block. It is moving towards the right with 10 meter per second. And one is this. Okay, now they will write. वैसे तो problem में पूरी कहानी लिखी होगी. I'm directly writing the काम का चीजें for you. Very heavy object. And it is moving towards left with 2 meter per second. Now think. अच्छा सर आपने तो बताया ही नहीं है कैसे. Very heavy का मतलब फिर से. The whole idea is the velocity of this particular thing will remain unchanged. Now you'll have to tell me the answer. Okay, so what you'll have to tell me, actually now that I'm telling you the velocity of this will remain unchanged, find final velocity of 2 kg. Final velocity of 2 kg. Here obviously हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. पहले बार में e की वैल्यू 1 ही ले लो. Perfectly elastic collision. Tell me final velocity of 2 kg block.
collision to be elastic. Elastic, perfectly elastic. Yes, right. बहुत छोटी सी हिंट जिसको भी डाउट लग रहा है ना, केवल एक ही इक्वेशन, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन ओनली ई का इक्वेशन, यू डोंट हैव टू राइट एनी अदर इक्वेशन टू फाइंड आउट दिस प्रॉब्लम, ओनली ट्राई टू राइट डाउन द ई का इक्वेशन फॉर बोथ द ब्लॉक, मतलब ई का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, केवल एक ही उससे आंसर आ जाएगा, जस्ट टू स्टार्ट विद, अगर ऐसा लग रहा है कि I'm giving you 2-3 more minutes, 2-3 more minutes, मतलब 30 more seconds. I got 3-4 right answers, but अभी भी अच्छा कितना, this is wrong actually अभी. Nikita, can you tell me how you are approaching the problem? ये अभी भी गलत है. अच्छा इसके बाद एक और प्रॉब्लम देखिए सिमिलर टाइप का. Nikita, tell me how you are approaching. Turn on your mic. तो मुझे बताओ कि क्या किया है. अरे your voice is breaking so bad. Where are you? I can't see you, and your voice is breaking a lot. I can see you now, but your voice is breaking a lot. एक बार और try कर. Turn your mic. Let's see अगर सही आ रही है तो. हेलो Yes, हाँ बता क्या किया तूने. सर, मैंने वो ई का फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया. मैंने Okay. शायद सब्ट्रैक्शन में गलती किया. अच्छा तो चल साथ में करते हैं. Okay, बता. So E is equal to हमारे पास. अच्छा first tell me how you are writing the equation V2 minus V1 upon V1 minus. First I तो I'm very much comfortable. First tell me what is my denominator term now. पहले वो बताओ. E is equal to something upon something. हाँ. 10 minus minus 2. Okay, cool. So basically either you write 10 minus minus 2, और किसी को अगर समझ में, किसी को डाउटफुल लग रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो डायरेक्टली आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू बी 12. ओके, व्हाट अबाउट द ऊपर वाला टर्म. It will be V1 plus 2. मैंने नीचे की I made a mistake in writing the denominator. अरे हाँ तेरे को समझ में आ गया, बाकी को तो समझा दे. हाँ तो बता ना, तूने V1 किसको माना है, लेफ्ट और राइट. लेफ्ट. इसको तूने V1 दोनों आगे माने हैं या पीछे माने हैं. V2 सेम ही रहेगा ना. V2 सेम रहेगा. वेरी गुड, कूल. एक्चुअली यही चेक कर रहा था. हाँ तो डोंट गेट कंफ्यूज. सो फाइनली V2 भी यही रहेगा. हाँ ओके, नाउ व्हाट टू राइट ऊपर. So 2 minus V1. 2 minus V1, is it right? एक बार मुझे सोचने दो. No, something is wrong. When you are writing 2 minus V1, then something is wrong. बहुत छोटा सा कुछ wrong. सोच, 2 is in which direction? Minus 2 minus V1. -2 minus V1, because V1 मैंने आगे माना है, और ये हमारा इनडायरेक्टली ये क्या होता था हमारा V2, और V2 जो हमने फॉर्मूला याद किया है, so V2 has to be in right direction. So when I'm putting in the formula, because final velocity very heavy object का मतलब क्या है, very heavy object का मतलब क्या है, that it is going in the right direction, है ना. तो हमारे लिए V2 की वैल्यू when I'm putting in the formula, it has to be -2.
बताओ। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। तो यहाँ पर लिखा मैंने -2 -v1 और e की वैल्यू एनी विच वेज मेरे लिए 1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना। ये कितना आ जाएगा, -2 -v1 इज इक्वल टू व्हाट, 12। तो v1 इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, अंडरस्टैंड, टेक दिस ऑन द राइट, -14। मतलब the ball which was earlier going in the right direction with the 10 meter per second, finally it will start going backward in the as basically the same direction as the heavy object with the speed 14 meter per second. अच्छा, किसी को अभी भी डाउट हो रहा है हाउ डिड आई अप्लाइड द इक्वेशन, तो मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ एग्जैक्टली द सेम, केवल वैल्यू चेंज करके। लग रहा है क्या किसी को, या चलेगा हम आगे बढ़े? सो द पॉइंट इज यहाँ पर ना, आई जस्ट क्विकली टेल यू, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक होती है। जो इसकी वेलोसिटी है ना, इसको माइनस करो और इसकी डबल वेलोसिटी से ऐड कर दो। ये हमेशा काम करता है, प्रोवाइडेड मैं अच्छा इसको बहुत ज्यादा प्रेफर क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तभी काम करता है जब ई की वैल्यू 1 है। बट इन द बुक्स ना दे विल डायरेक्टली राइट दिस थिंग, व्हाट दे विल राइट, आई विल टेल यू। दे विल से कि जो वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी को ऑपोजिट करो तो वो -10, मतलब वो पीछे की तरफ हो जाएगा। अगर आगे है तो उसको पीछे कर दो, और जो वेरी हैवी ऑब्जेक्ट है ना उसको डबल कर दो, दैट्स इट, और दोनों को ऐड कर दो। तो इसको डबल करूंगा 2 को तो वो हो जाएगा 4। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करो, you'll get the 14। Any which ways, if you are comfortable writing this equation, it won't take much time, and it is only applicable when e is equal to 1। Again I'm repeating, but ठीक है, दिमाग में सुन तो लो ही, क्योंकि you'll get to see this thing। टू, जो हमारा छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, एक्सचेंज जस्ट डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी, जस्ट रिवर्स दैट, एंड जो वेरी हेवी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी से उसको ऐड करना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि सपोज ये मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड है और ये मेरे पास वॉल है। अच्छा, वेरी हेवी ऑब्जेक्ट, और वो तुमसे बोलेंगे वॉल है सपोज, एंड दैट वॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी लेट्स से 1 मीटर पर सेकेंड। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ, वॉल की तो वही रहेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑफ बॉल की निकालनी है तो क्या करो, इस 2 को उल्टा करो और डबल कर दो। दिस 2, सॉरी इस 2 को नहीं, इसको डबल करना है। इस 2 को पीछे करो तो वो हो जाएगा 2 इधर, और जो वॉल है उसको एग्जैक्टली डबल कर दो तो 2 इधर, तो 4 हो जाएगा। बट पीछे की तरफ होगा, याद रखना। तो आइदर राइट इट एज -4 और दिस है। Again, it is only, I don't prefer this thing very much because it is only applicable for e is equal to 1। इससे अच्छा क्या है, ये फॉर्मूला हमको समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है, राइट इट डाउन एंड you'll get the answer। ओके, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम में कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं है। क्या बोला गया है, देयर आर 2 बॉल्स 2 kg। अच्छा, जब भी बॉल की बात हो रही है ना, बॉल के अलावा कोई भी शेप होगा ना, दे विल राइट लाइक अ ब्लॉक, और वो हमेशा हेड ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, oblique collision की जब बात होगी then only we will talk about spherical ball, but anywhere else, if the shape of the object is given other than the spherical, it is always a head-on collision। Okay, this is 4 is given, this is 2 is given, 2 kg 4 kg, this is 2, and what is given finally after collision, this is, sorry, this is 2 kg. After collision, the 2 kg block is starts going backward with the speed 2 meter per second। First thing that you have to find velocity of 4 kg। ये actually, now this is the repetition of the problem। The second problem which I want to find E, थोड़ा सा get comfortable with the E का formula, and maximum potential energy during collision। Find maximum potential energy during collision। This is the important thing that I want you to think about it। तो अच्छा, पहले 2 पार्ट हमने अभी 1 2 2 3 प्रॉब्लम कर लिए हैं टू फाइंड आउट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, हाउ टू गो अबाउट इट, है ना। सो बट पहले एक बार ये दोनों पार्ट एक बार गेट मोर कंफर्टेबल। व्हाट इज गिवन, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, final velocity of 2 kg is given, 4 kg velocity you have to find out। It is super simple here, already got the answer। 4 is this and this is 1। Okay, pehla 1 and 2.5 is right। Okay, these two are right। Avishkar, yes, सही है वो।
Think about this part. Purval, where are you? I want to see your beautiful face. Where are you? The cost of this is right. Sujesh, this is right. I want to see Purval. Purval, turn on your mic so that you will come by default to per in my screen. Yes, sir. Okay, hi. Okay. So when you are writing 1.5, E हमने डिफाइन नहीं कर दिया है वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो 1.5 तो हो ही नहीं सकता. अगर ऑप्शन आ भी गया है 1.5, तो आई कैन डायरेक्टली से कि वो गलत है ना. तो अपने आप समझ जाना कि तुमने कोई कैलकुलेशन, योर फर्स्ट आंसर इज राइट. सेकंड समझ जाओ अपने आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है. तो 1.5 तो फॉर श्योर ई कैन नॉट बी 1.5. अच्छा, पहले दो पार्ट के यार बाकी जितने लोगों ने भी आंसर दिए हैं सबके एक्चुअली आंसर सही आए अभी. ओके, तो मैं पहला दो पार्ट बता रहा हूँ बिकॉज आई गॉट क्वाइट अ फ्यू आंसर्स एंड दे आर राइट. सो क्विकली जस्ट सी. पहला वाला पार्ट तो सुपर आसान. क्या मोमेंटम कंजर्वेशन दुनिया में हमेशा वैलिड है? यस. ओके, सो इनिशियल मोमेंटम 2 into 4. अच्छा, मैं साइन के साथ लिखता जा रहा हूँ. इट इज +4 बिकॉज वेलोसिटी इज इन द राइट डायरेक्शन. सेकेंड वाले के लिए 4 into -2 is equal to finally 2 into -2 because this is going in the backward direction. इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, जो नहीं पता होती मैं उसको हमेशा ही राइट में मानता हूँ. अच्छा, अब सर आप v2 क्यों लिख रहे हो? ओके, आई एम राइटिंग ओनली v क्योंकि मुझे 3 पता है. सो ओनली यूज वन सिंबल and then let's try to apply the E equation. You'll get a better idea. Okay, so 2 into -2 plus 4 into v. इससे भी ये कट जाता है, गायब हो जाता है, ये पूरा गायब हो जाता है. सो दिस कम्स आउट टू बी v is equal to comes out to be 1 मीटर पर सेकंड. फाइंड द e. E का इक्वेशन सर हमने एक ही इक्वेशन पढ़ा है which was v2 minus v1. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था. ओके, नाउ जस्ट टू फील दिस थिंग, एक बार और समझाना चाह रहा हूँ. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जस्ट टू सी दिस थिंग. One is going with v here, second one is going to here. So with what velocity they are separating with each other? दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो माइनस कर रहे थे बिकॉज दैट वाज v2 minus v1. एक समझना, 4 kg इधर है, 2 kg इधर है, एंड दे आर सेपरेटिंग विद दिस. दोनों का ब्रेकअप हो गया, समझना ध्यान से. दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट. अब याद रहेगा, ब्रेकअप वर्ड से याद रहेगा क्या तुम्हें? तो कैन आई डायरेक्टली राइट इट इज v + 2. प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म हो गया है. समझना. एक v से इधर जा रहा है, एक 2 से इधर जा रहा है, जो मैंने डायरेक्शन दी है. So can I directly write that thing is because they are separating with each other. v + 2 upon with what velocity they were approaching each other? 4 and 2 they were coming towards each other. Can I directly write 4 + 2? बताओ. Is this thing getting clear to everyone? Now हमें क्या बताना था? E. So v कितना आ गया था? 1. This is 1 + 2 upon 4 + 2 is 6, which is 3/2. E is coming out to be half. बताओ अभी ये समझ में आ रहा है क्या? पूर्वल, अभी समझ में आई क्या तेरे को अपनी गलती? पूर्वल, गुड. कहाँ गया तू? हाँ सर, साइन गलत लिया. Fine, गलती. अच्छा, again I'm saying either you remember the formula properly or just feel it, how separating, what is the approach means. Again मैं बता रहा हूँ, normally ना ये feel वाली जो चीज when I'm saying this है ना, try to understand or try to make up your own story in your mind, है ना. Separation or approach when I'm saying all these things for the time pass. But if you will connect with any of the word, then it's easier to remember in that way. Okay, the maximum potential energy loss, I've got, yes. Not one right answer. I think Avishkar, your answer is right. Okay. कौन और बताना चाह रहा है? Not Avishkar, किसी और. Sujesh, where are you? Your answer is wrong, but tell me what you did. Now that you've given me the answer, where are you? Sujesh is
Turn on your mic. Sujesh. Acha, when I'm saying, please take it so that you will get to हेलो know better. हाँ, yes. हाँ Sujesh, सर तेरे पास कैमरा नहीं है क्या? Where? सर हाँ, नहीं देख. हाँ, yes, I can see now. Yes, सर tell me. मैंने क्या क्या किया? किया मैं Hmm. सर आई रोट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. Oh, okay. Then this is the only concept I want to tell you. No, okay. So understand, do you remember this in maximum potential energy during the collision? During the collision, maximum potential energies, I asked you to remember the spring wala case. When maximum potential energy happens, from going from here to here, can I say there is a case in between where both the blocks will be in maximum, एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, and the maximum potential energy will be when जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन. अच्छा, इज एवरीवन कंफर्टेबल दैट देयर इज अ पॉइंट in their life where both will be moving with the same velocity for one instant? Can you imagine that? Again, what is happening when this is going, this is coming towards each other, both will, एक की velocity कम होगी, एक की बढ़ेगी. At one point of time when the maximum deformation happen, that's when the maximum potential energy will be there, when they will be moving with the same velocity. And this is how it happens. This is when we can assume the E is equal to 0. If actually E is equal to 0, my going from here to here, it stops if E is equal to 0. Do you remember this whole kahani? Velocity is same, that's when the maximum potential energy will be there. बताओ बताओ बताओ, याद आ रहा है क्या ये चीज सबको? अभी याद आया क्या? बताओ बताओ सुजेश, याद आ रहा है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था बेसिकली. डू यू रिमेंबर दिस थिंग? यस सर. Okay, so now how to find out the maximum what is the common velocity? Maximum duration, momentum conservation. Can I apply the momentum conservation everywhere? Yes. And surprisingly, in this problem it comes out to be 0. Why? Initial momentum is what? 2 into minus 4, quickly write, plus 4 into, sorry, 2 into plus 4, 4 into minus 2 is equal to common velocity. I'll write m1 plus m2 into v common. Here somehow it comes out to be 0. Okay, does not matter. So अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, सर न्यूटन ने तो बोला था कि अगर किसी चीज की वेलोसिटी कभी 0 हो गई है तो वो जिंदगी भर 0 रहनी चाहिए. अगर अगर इफ यू आर सेइंग गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई है तो सर उनको वापस वेलोसिटी कैसे मिल रही है? कैन समवन वांट्स टू एक्सप्लेन दैट? व्हाट? बिकॉज़ अगर 0 हो गई है तो 0 ही रहनी चाहिए ना हमेशा. सर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ना. एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है ना, क्योंकि जब ये हुआ है ये एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं. दे आर नॉट अलग अलग. ये ऐसी सिचुएशन हो गई है, ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं तो अंदर अभी वो घुसे हुए हैं एक दूसरे के अंदर. तो लेफ्ट वाला इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन राइट वाला इन दिस डायरेक्शन, राइट वाला इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन लेफ्ट वाला, जब टिल व्हेन दे आर इन कांटेक्ट. एंड दीस टू फोर्सेस आर मेकिंग श्योर दैट दे separate with each other, and that's why again they regain their velocity. That's the whole idea. So velocity is 0. So what is the maximum potential energy? Initial energy, which is half m1. So okay, I'll start writing it at the same time. Half m1 is 2 and velocity is 4 chi square. The second one is having the velocity half 4 into 2 chi square. And in this case, it is coming out to be 0. Minus, ideally, we should do minus half m1 plus m2 into 0 chi square. And this is what the maximum potential energy. It is, again, just to remind you this thing, I told you, when we write all this, now this is exactly like a spring wala case. This block is coming here, there is a spring here. When they move with the same velocity, that's when the spring is maximum compressed, when their velocity is common at one duration. That's when the spring is maximum compressed, and that maximum compression, which is half kx square, is basically the potential kinetic energy difference between these two. बोलो, इस ये चीज क्लियर हो रही है? अभी किसी को डाउट लग रहा है क्या इस चीज में? जल्दी 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 देखो, आराम से देखो मैंने क्या किया है. कैलकुलेशन में तो कुछ है ही नहीं है, जस्ट व्हेन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यूरिंग द कोलिजन, है ना. इफ आई एम डिफरेंस, so Sujesh, what you are doing now,
कि अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक व्हाट इज द लॉस इन द एनर्जी, दैट्स व्हेन द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी काइनेटिक, दैट इज द एनर्जी लॉस इज देयर बिकॉज E is not 1, so energy loss is there. So if I'm asking you what is the, like in this problem, like fourth would have been energy loss or the heat loss, anything, then that I'm not calculating that, or not, I want you to calculate, then when we will do this thing, है ना, समझ आ रहा है Yeah, ना? sir. ओके ओके कूल. किसी को यहाँ तक डाउट कोई क्या? एक चीज बिफोर आई कम टू द ओब्लिक पार्ट, है ना, एक लास्ट चीज जिसको हम बहुत डायरेक्टली यूज करते हैं, दैट इज एक बॉल मेरे पास आ रही है ऑफ m mass, it is striking the ground with a certain speed u, है ना. We used to do these things a lot, that if it is elastic collision it will go back with the same speed, है ना. But if the collision is not elastic, there is a coefficient of restitution which is given. Suppose this is the ground or the earth, then you just have to remember this result. Just after collision, its velocity becomes e into u, coefficient of restitution times e into u. This is what you are supposed to remember. How I'm coming to this, if you feel like, I can just make you write the equation, which is v2 minus v1 upon u1 minus u2. So what I'm saying is, who is at rest? Ground is at rest always. If I'm writing this ball as 1, so its initial velocity is in the downward direction, which is u. So my for me u1 is u, right? So I'll write and so my second, this object I'm seeing here is 1, this object and ground I'm seeing is 2. So v2 and u2 both will become 0. So this is 0 minus v1 upon u1 is, it is going in the downward direction, है ना. So I'll write it as minus u, and again this is also 0. So देखो ध्यान से क्या आ रहा है, ये जस्ट केवल लिख के बता रहा हूँ, इसको तुम्हें याद ही रखना है. So I'm getting minus eu is equal to minus v1. So I'm getting as v1 as plus eu. Means after striking, it is going up with the velocity e into u. So if a ball is striking a ground with the velocity u, just after striking, its velocity will become equal to eu. अगर e की value 1 होती थी तो वो u velocity, and this same thing is applicable for the wall also, है ना. ये डायरेक्टली मल्टीपल जगह ऐसे यूज होता है ना, ये सीन ऑल्सो आई एम श्योर. ये है हमारे पास ब्लॉक है, अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा है, एंड वॉल एंड ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन एज e. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग with the wall, it will go back with the velocity e into v. I hope this thing is clear to everyone, right? किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? इस पे ना टाइम पास से प्रॉब्लम बनते हैं. I'll just tell you so that you get the idea why I'm telling you this. Suppose if I ask you a ball, एक प्रॉब्लम करते हैं लास्ट ऑफ द दिस थिंग बिफोर वी कम टू ओब्लिक कोलिजन. एक एम मास की बॉल है, आई एम ड्रॉपिंग दिस बॉल विद द स्पीड एट अ हाइट एच, ड्रॉपिंग इट. The coefficient of restitution between the ball and the ground is given as e. ठीक है, अभी ये ड्रॉप होगा. अच्छा, कैन यू फील दिस थिंग? इट्स e is always between 0 and 1. So the velocity after striking will reduce. So can I say it won't go back up till that height? अगर हमने h height से ड्रॉप करा है, if after striking its velocity is reducing, why it is reducing? Because of e. So ball will, अच्छा बॉल का मोशन कैसा होगा? It will go here. Before you start the problem, can I say वो ऐसा होगा, फिर ये ऊपर जाएगी, ये सेमी लाइन पे हो रहा है, मैं बस केवल अलग बना रहा हूँ so that you see this. Can I say it will be like this? It won't go up till the same height. Again it will strike, it will go till here, come back here, come back here, come back. Can I say the motion will be like this? Getting the idea? Find the total distance. Find total distance. Total distance traveled by the ball. Think. Try it. I'm just coming. I'll just bring the water. But try this interesting problem. हाँ. वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढना है ना हमें. Total distance. कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉल? बॉल ऊपर नीचे जाएगा ना. हाँ ऊपर नीचे ना, हाँ मतलब आगे नहीं जा रहा है, डिस्टेंस ऊपर नीचे वाला यही कम होता जा रहा है ना, इवेंचुअली तो रुकेगा ना. दैट टोटल डिस्टेंस. ओके, ट्राई इट.
किसी को कोई प्रॉब्लम में डाउट लग रहा हो ना तो एक बार पूछ लेना, मतलब किसी को ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन में कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। ऐसा तो नहीं है ना? क्वेश्चन समझ में, अरे थोड़ा सा कैलकुलेटिंग, मतलब थोड़ा सा एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है ना? बट डू यू गाइस वांट टू टेक दिस थिंग एज होमवर्क? तो मैं इसमें एक दो पार्ट और ऐड कर देता हूँ। इफ ओके, टेक दिस थिंग एज अ होमवर्क, थोड़ा सा मजा आएगा करने में, मतलब अभी जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड सेकंड पार्ट, टोटल टाइम आल्सो, कितनी देर में वो रुकेगा, फाइंड टोटल टाइम बिफोर इट स्टॉप्स, टोटल टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस अगेन लाइक जस्ट इसके पहले जो मैंने बताया, डिस्टेंस ये हमेशा ऊपर नीचे ही है ना? ऐसे ही हो रहा है एक ही लाइन में, केवल वो दिखाने के लिए मैंने आगे बनाया है कि कितनी देर में वो रुकेगा और कितनी डिस्टेंस मूव करेगा। टोटल डिस्टेंस मूव्ड लिख दो, मतलब हाँ, बट टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल। ठीक है, मोमेंटम में भी चेंज पूछा जा सकता है, बट अगर इफ विल गेटिंग वन ऑफ द आइडिया देन प्रॉब्ली वो सभी आ जाएगा। ठीक है ना? तो एटलीस्ट चलो क्वेश्चन इज क्लियर। Okay, quickly take the break, है ना? So that after this we will be starting oblique collision. So by my watch it is 9:26 हो रहा है, 10 मिनट सही है ना? Cool. So take this thing as homework. 10 मिनट चलेगा सबको? किसी को 10 मिनट में जिंदगी में दिक्कतें तो नहीं है ना? So we will be meeting 9:27 ना? नहीं सॉरी, क्या होता है 36। ठीक है, खा लो, जिसके घर में ब्रेकफास्ट बन गया खा लो, नहीं बना है तो यू कैन ट्राई द प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, सो विल बी मीटिंग 9:26।
ला 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 ला। ओके आयुष, हम ही दोनों बचे लाइक लास्ट टाइम। आ जाओ वापस सभी लोग। चलो आयुष तुम ही बता दो, चलो क्या चल रहा है जिंदगी में। ये मत बोलना सेम, बेकार जिंदगी है। आयुष यू कैन से समथिंग। गुड मॉर्निंग। इज इट द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस? आविष्कार इन दिस प्रॉब्लम, यार डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? इवेंचुअली तो बॉल रुक ही जाएगी ना, तो जीरो ही हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट तो। इवेंचुअली बॉल करके रुक ही जाएगी। डिस्प्लेसमेंट तो वो सेम ही जगह पर हो रहा है ना, आगे तो जा ही नहीं रहा है। तो मैंने डायग्राम बनाया, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज दिस, सर है डिस्प्लेसमेंट ना। एच डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा, या हाँ डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट पूछने का तो क्या ही मजा ही नहीं है ना। ओके, तो डिस्टेंस है ना। हाँ वो डिस्टेंस है। अच्छा मैंने डी आई एस लिखा है यार, डी आई एस पी लिखता हूँ नॉर्मली मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट दिस इज डिस्टेंस, यस। ओके नेक्स्ट पार्ट इज ओब्लिक कोलिजन। क्या बेसिक आइडिया हमने ओब्लिक का लास्ट टाइम बताया कि ओब्लिक किसको बोल रहे हैं? जहां पर भी हमारे पास जिस डायरेक्शन में इंपल्स एक्ट कर रहा है ना, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, इफ दे आर टू सेपरेट थिंग। होल आइडिया इज बहुत सिंपल सा, कहानी क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ओब्लिक कोलिजन इज, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट इज दैट? सपोज अ बॉल इज मूविंग व्हिच यू मस्ट हैव सीन आल्सो अर्लियर। सपोज बॉल हमारे पास ऐसे मूव हो रही है v वेलोसिटी से u से, दिस इज लाइक विद द वेलोसिटी u जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, वो u स्पीड से आ रही है और हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लेते हैं, लेट्स से थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से थीटा ले, हाँ ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया हमने, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज माय बॉल व्हिच इज अबाउट टू स्ट्राइक, और ये मूव कैसे कर रही है, लाइक दिस। क्या ये ओब्लिक कोलिजन है? बिल्कुल 100% ओब्लिक कोलिजन है। सर आप कैसे कैसे बता? हमारा जो कॉमन नॉर्मल है दोनों का वो ये है, मतलब जो इम्पल्स लगेगा ऑन द बॉल वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सो व्हेनेवर लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट इफ दे आर टू सेपरेट थिंग, इट इज ऑलवेज द ओब्लिक कोलिजन। सिंपलेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड पहले भी रेस्ट पर है और बाद में भी रेस्ट पर ही है। तो द होल आइडिया इज, अच्छा अगर ये हमारे पास क्या होता इसमें भी, अच्छा ओब्लिक कोलिजन में भी इलास्टिक इन इलास्टिक हो ही सकता है। वो डिफरेंट दो कैटेगरी है डिफाइन करने की, है ना, दो अलग अलग कैटेगराइजेशन है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज हैपनिंग, दिस बॉल विच इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, अगर मैं तुमसे बोलूँ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये बिफोर स्ट्राइकिंग बात हो रही है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब मैं तुमसे बोला ये होगा u sin थीटा के बराबर। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन? मैं इसको ना थोड़ा सा सेपरेटली आगे बना रहा हूँ सो दैट टू गेट योर बेटर आइडिया। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि तुम अगर बॉल को ऐसे फेंकते हो तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाती है, लाइक दिस। उसी चीज को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। what will happen, ball will start going this, तो for sure I have a feeling कि यार ये ऐसा ही होता है। let's say ये v velocity से जा रही है। now if I ask you क्या क्या component होंगे, now by now can you feel this thing, if impulse is acting in this direction, which direction? In this case it is y direction, so definitely only y direction का velocity will change। now if I say फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v, तो उसका एक x कंपोनेंट होगा, सेपरेटली उसको स्टडी करते हैं, और इसका एक y कंपोनेंट होगा, और ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। तो हमसे क्या क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी बता दो, इन विच डायरेक्शन इट विल स्टार्ट मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर कोलिजन, ये सब चीजें पूछी जा रही है। अभी भी क्या बात करी, x को y से लेना देना नहीं है, y को x से लेना देना नहीं है। सो इफ माई impulse is acting in y direction, can I say x direction component will remain intact? If my impulse is acting in the y direction, whatever be the direction of velocity in x, it will remain intact. तो for sure can I say it is u cos theta only? क्या ये बात समझ आ रही है सबको? बताओ बताओ बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, I'm sure, right? Now if I ask you y डायरेक्शन में क्या जो हमने अभी पढ़ा, क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ? यस हमने तो क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंट ट्रीट करने। अगर बिफोर स्ट्राइकिंग माय वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज u sin थीटा, which is like this case,
इफ माय y डायरेक्शन वेलोसिटी इज u sin थीटा, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, कैन ऐसे उसमें केवल e को मल्टीप्लाई कर दो एंड डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो. जस्ट नाउ वी स्टडीड. तो कैन आई से y डायरेक्शन की वेलोसिटी, आई कैन डायरेक्टली से इट इज नथिंग बट e into u into sin थीटा हो जाएगा. इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलना, मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया बाय पुराना वाला लॉजिक. Oblique collision is nothing but one component of oblique collision will exactly behave like a head-on collision, और जो parallel component है which is surface का parallel और perpendicular to the normal वाला वो intact रहेगा. Again I'm repeating, whenever you see any particular collision to be oblique, so what you have to do, just resolve the component of velocities like head-on and perpendicular to head-on. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, x डायरेक्शन का ये है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं. इफ दिस इज लाइक दिस, ये ऊपर चेंज हो जाएगा मेरे पास एंड इट विल कम आउट टू बी दिस. बताओ 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 बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं तुमसे बोलूं ये एंगल अल्फा, किसी को नहीं हो तो बोल देना, ठीक है. तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है, अगर मुझे उसका स्पीड पूछा गया या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है, वो क्या है कि हमें x कंपोनेंट ऑलरेडी पता है, y कंपोनेंट हमने निकाल लिया है. Just do under root of this square and this square. This is what u square cos square theta plus इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, e square u square sin square theta. If the value is given whatever, we can find out the magnitude. दूसरी चीज, in which direction it will start moving, tan alpha. So tan alpha क्या आ जाएगा मेरे पास, vy upon vx. Something like a projectile also, मतलब कुछ ऐसा नहीं है. Vy upon vx, what is Vy for us? It is u sin theta upon what is Vx for us? It is u cos theta. गायब गायब गायब, yes. So tan alpha is coming out to be e times tan theta. Then you can see it directly. अगर मेरे पास पहले एंगल अगर थीटा है तो फाइनली एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कम होगा. क्यों? क्योंकि e हमारे पास 1 से कम होता है. That's the whole idea. अच्छा, एक चीज और आ गई, I'm repeating. If they are giving you the angle from the y-axis, है ना, then वो हमारे पास अपॉन ही आएगा. Don't get confused with this. Apply the basic logic of the oblique collision. Clear है ना? And अगर ये oblique collision है, but if E is given as 1, if it is an elastic collision, then you can see that Vx and Vy वही होंगे जो exactly पहले वाले थे, है ना. तो Vx तो हमारे पास any which ways उसको कोई लेना ही देना नहीं है पुरानी वाली चीज से, तो it is u cos theta. But in this case, if it is E is 1, then it will be u sin theta. Then my जो एंगल है tan alpha is equal to tan theta हो जाएगा, because E is 1, अल्फा थीटा हो जाएगा. मतलब जिस एंगल से बॉल आ रही है उसी एंगल पे हमारे पास बॉल जाएगी. बीटा और अल्फा और थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा. बोलो, ये क्लियर हो रहा है? एनी डाउट इन दिस बेसिक पार्ट ऑफ दिस? आई एम कमिंग टू द टू बॉल सिस्टम, बट यहाँ पे किसी को डाउट है क्या कुछ भी? जल्दी, एनीथिंग that you think ये नहीं समझ में आ रहा हो, oblique कैसे है और how I'm directly applying? Yes. सर, सर कोलिजन के टाइम हम y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे? Collision for only for the ball, यार मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या ये ग्राउंड का मास दिया है क्या? मोमेंटम तो दुनिया में हमेशा कंजर्व है. जब मेरे पास बॉल अगर अर्थ से टकरा रही है, तो इफ यू आस्क मी अगेन, क्या बॉल का मोमेंटम कंजर्व है? नहीं. क्या अर्थ का मोमेंटम कंजर्व है? नहीं. बट क्या बॉल प्लस अर्थ का दुनिया में हमेशा कंजर्व है? यस. सर बट अंडरस्टैंड. हाँ, कोलिजन के टाइम ग्रेविटी का इफेक्ट मतलब हम ये लेते हैं ना, इम्पल्स है इसलिए फिर से ग्रेविटी इज नॉन इंपल्सिव फोर्स. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जब हमने बॉल को ड्रॉप करा और जब हम यहाँ पे आ रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट जब मैंने यू यहाँ बनाया, क्या मैंने यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करी? हम अज्यूमिंग जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी टू बी यू. So just before and just after gravity is a non-impulsive because that duration is very small. हाँ सर, इसलिए बोल रहा था कंजर्व करना चाहिए ना मम्मी, मतलब कंजर्व कर सकेंगे ना सबका मोमेंटम. बट किसका when you are saying कंजर्व कर सकेंगे, किसका तुम बोल रहे हो? बॉल का नहीं होगा ना. बॉल का मोमेंटम कैसे अच्छा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर द बॉल, इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट? यस. ओनली फॉर द बॉल आई एम टॉकिंग अबाउट. एक बार देखना, एक बार ध्यान से. फाइनल मोमेंटम बॉल का क्या है? ऊपर के डायरेक्शन में. अच्छा, एक्स डायरेक्शन, एक मिनट, सारी चीजें करते हैं अलग अलग. एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ऑफ द बॉल इज change in the momentum of the ball is 0. Initial velocity in the x direction is 0. Final velocity in the x direction is 0.
If I talk about what is the y direction में ball का momentum में change, can I say final velocity is positive, ऊपर की तरफ है, so consider to be positive, m into u into sin theta minus initial velocity of the ball in y direction, वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे लिखूंगा minus m u sin theta. This they might ask you this question obviously. यहाँ से क्या आ रहा है, mu sin theta you can take it as common 1 plus e. क्या बॉल का मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर आ रहा है क्या, या चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा है क्या फॉर द बॉल? नहीं आ रहा। हाँ, तो वाई 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 नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक जो अच्छा तुम दिमाग में कुछ और सोच रहे हो, बोल कुछ वो कुछ और कर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जितने भी ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रॉब्लम करे, जितने भी करे, कैन यू सी दिस थिंग कि हर जगह पे दो बॉल थी? वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम. अभी तुम दिमाग में क्या सोच रहे हो कि सर एक बॉल है मेरे पास और दूसरी बॉल है अर्थ. So indirectly मेरा collision किससे हो रहा है, अर्थ से हो रहा है ना. So earth is considered to be another object. तो अर्थ प्लस बॉल का मोमेंटम कंजर्व होगा, yes 100%. बट ओनली बॉल का मोमेंटम कैसे कंजर्व हो सकता है? देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग ओनली ऑन द बॉल. अच्छा, मतलब नॉर्मल की वजह से कंजर्व नहीं हो रहा है. हाँ, बट अगेन इफ यू आस्क मी, अगेन ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछा गया है, इज द मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस अर्थ इज कंजर्व, आंसर इज स्टिल यस. पर ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं है ना इसमें? ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, बट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर नहीं आएगा. ओके सर. अच्छा, तुम्हें ये याद है मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैंने प्रॉब्लम करवाया है क्या, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऊपर फोड़ा था, है ना, और वो कहीं दो पार्ट में टूट रहा था. मैंने बोला था तुमसे, क्या मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कंजर्व्ड एट द इनिशियल पोजीशन एंड दिस पोजीशन, और जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इज कंजर्व्ड? वेयर इज इट कंजर्व्ड इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे फूटता है तो? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर इन सारे डायरेक्शन. व्हाई नॉट इनिशियल एट द फाइनल, इनिशियल एट द हायर होता है, और जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में नॉन इंपल्सिव रहती है ग्रेविटी, राइट, है ना. सो जस्ट नहीं तो ग्रेविटी इज ऑलवेज नॉन इंपल्सिव, जस्ट यहाँ पे हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया. So a small value multiplied by a decent number will give you a decent result. A small value मतलब mg, something like 100 Newton or 10 Newton or whatever. But if it is being multiplied, suppose mass of this ball is 1 kg. So mg is this. If it is multiplied by a decent number, suppose time is taken by 5 seconds, is it giving me a decent number? 50 is a decent number. But just before and just after, mg is still this. But that just before and just after duration of the time is still, let's say 10 raised to minus 10. Is it giving me a very bad number to for the calculation? Yes. Then this time per this is not giving you any change in momentum. So just before and just after gravity is non-increasing. Right? अभी सही है? I hope सबको भी समझ में आ रहा होगा. किसी का भी डाउट हो सकता है, very genuine doubt, है ना. सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें वो लॉजिकली अभी भी नहीं समझ आया तो बताना. अच्छा, इन दिस प्रॉब्लम दे माइट हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द एक्स डायरेक्शन में, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल इन वाई डायरेक्शन. ठीक है. Interesting problem, a very practical problem of a ball, which is the first case that I'm taking. Suppose I have two balls exactly identical. Identical बन जाए तो बहुत अच्छा है. वैसे तो एक छोटी लग रही है, एक बड़ी लग रही है, थोड़ा छोटी हो जाएगी तो 1 second. Okay, so they are almost नहीं, for the calculation it is exactly identical ball. Their line joining between the center is this. Now अच्छा, ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वाला प्रॉब्लम तुम करना. ओके, so this is the line joining just before and just बहुत ही WhatsApp language लिख दी मैंने, just before. Okay, so and this ball, both the masses of the ball is m. This is the result that you are supposed to remember. This is moving with the velocity u in this direction, and the line joining between and the velocity, they are making angle theta with each other. Okay, let's assume कुछ सुंदर सा कलर क्या होता है, this. ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है. हमसे बोला गया है, अच्छा वैसे तो क्या क्या चीजें बोली गई है, फाइंड मल्टीपल चीजें, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, एट व्हाट एंगल दे विल after the collision, where they will go and all. First let's try and understand. As soon as this will happen, what will happen whenever the can you see first thing, is this oblique collision or head on? Oblique. The direction is line of motion is this,
line of impact is this. So they are separate. तो पहली चीज मुझे पता लगी that this is a oblique collision. What to do? I told you, as soon as you see an oblique collision, immediately resolve all the velocities along the line of impact. Okay, तो मैंने बोला नीचे वाली तो रुकी हुई थी. So what I'll do is I'll just immediately resolve all the components. One second. Okay, I'm resolving both the velocities like this. Can I say that I'm removing this? So I'm resolving. See the diagram. This ball having velocity. So can I say this is having one component in this direction, which is u cos theta, and one component in this direction, which is u sin theta. I have resolved it. That's why I've removed the original u. So this, so, or I can say the ball, this m ball has two component of velocity. One is u cos theta here, u sin theta here. Again, I'm talking about before collision. This is the diagram again, still before collision. Now, what I just told you, in the direction of line of impact, velocities gets, momentum gets redistributed. In this case, forget about this. Immediately forget about this. Can I say after the collision, what will happen? This is one of the ball. This is another ball. Like this. This ball, the component of velocity which it has before the collision, which is perpendicular to the normal, was u sin theta. Can I say it will remain exactly the same? This is again I'm talking about after collision. अब बिल्कुल अपने दिमाग में वापस आओ, हमने क्या बोला था? हमने वहां पर क्या बोला था? That if this is u cos theta, this is 0. If e is equal to 1, mass of both the balls are exactly same. The velocities get the interchange. If velocities get the interchange, can I say the velocity of नीचे वाला ball will become u cos theta in this direction, and this component of velocity which is in the y direction, can I say by the purana wala logic, I can not a y, by this logic can I say it will become 0? किसी को इस चीज में डाउट हो तो प्लीज बोलना मुझे फट से. What I'm saying is velocity of ऊपर वाला ball after collision will be u sin theta in this direction, and this will become exactly 0. Can I say this thing? इसमें किसी को डाउट हो? By what logic? Again, I'm going back to the previous logic of a head-on collision one. If both velocities are same, if e is equal to 1, then this will happen. Tell me, is that clear? जल्दी बताना पड़ेगा ये इसका अगला प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है, बट यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है? प्लीज डाउट हो तभी बताना, ठीक है? ओके, कैन आई से यार ये तो एग्जैक्टली ऐसा हो गया, ये u cos theta and this u sin theta was initially perpendicular and velocities are getting changed. Leave speed is also obviously speed के साथ साथ डायरेक्शन भी हमारे पास आ रही है. Can I say they has to move after the collision, both the direction of the velocities will be always be perpendicular. Remember. Tell me. ये बात समझ में आ रही है? So remember that this is one special case that you are supposed to remember. In oblique collision, so they will actually move perpendicular to each other. They will move perpendicular to each other after collision. और ये कब हो रहा है? And this is one of the special case where what is happening? क्या-क्या primary condition है for both the balls to move perpendicularly to each other after collision? Mass has to be the same, E has to be 1, and the second important thing is one ball has to get rest. If one ball is at rest, this is exactly the case of the snooker ball. जब हम हिट करते हैं बॉल को, है ना, तो हम किसी एक बॉल को हिट करते हैं, उस टाइम पर सारी बॉल रेस्ट पर रहती है, सारी बॉल. If one of the ball is hitting another ball of the which is at rest, they always move perpendicular. If it is a head-on collision, एक exactly रुक जाती है, दूसरी वाली same velocity से आगे जाती है. If they are hitting normally, वो oblique collision ही होता है बहुत बार. Then they always move perpendicular to each other. If अगर एक ऐसे जाएगी, दूसरी बिल्कुल exactly ऐसे जाएगी. This angle is always 90 degree, provided one ball is at rest. क्या ये चीज समझ में आई है सबको? Logic समझ में आया? This angle will always be 90 degree. Tell me, is this clear?
क्योंकि अगला प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना है. अगेन concept idea is always the same, that along the direction of line of impact resolve all the velocities and treat that velocities to be like the head-on collision. If you have any velocity which is perpendicular to the line of impact, they will remain unchanged before and after collision. एक ही प्रॉब्लम करेंगे उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. बट हाँ, क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम समझ आ रहा है क्या? किसी को कोई कंसेप्चुअली डाउट इन दिस? एनी एक बार तब तक देखो. आई वांट टू मेक द अगला वाला डायग्राम व्हिच इज द इंटरेस्टिंग वन. देखो एक बार, कुछ कुछ ऐसा लग रहा हो तुम्हें, स्टिल यू आर नॉट एबल टू जिप जिप जिप. बताओ बताओ बताओ, समझ आ गया ना? 2 kg 4 kg exactly identical. 4 meter per second, this is 2 meter per second. अरे पहले एक और, अच्छा नहीं चलो पहले एक बार ओब्लिक और करते हैं, इसके बाद काफी अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं इन दिस. ठीक है, ऐसा वाला कुछ कहानी है. What is given? The radius of both the spheres are same. This is our, अच्छा वो दिख ही रहा है, अच्छा तो डायग्राम से दिख रहा है. Both the spheres are identical. One is of 2 kg, one is of 4 kg. This is 4 meter per second. This is 2 meter per second. अच्छा पहली चीज, क्या ये oblique collision है? First thing, yes. Directions are opposite. Line joining between them is opposite. Second thing, what I'm asking, अच्छा यहीं पर ही एक ही प्रॉब्लम में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर e की वैल्यू भी कुछ और ले लेते हैं. e की वैल्यू ले लेते हैं 1/3. यू विल हैव टू टेल मी द फर्स्ट थिंग एज e 1 होगा तो और आसान हो जाएगा. इट जस्ट है ना. इफ e is 1/3 then you will have to write all the equations. इससे मुश्किल प्रॉब्लम अगेन आई एम टेलिंग यू, you won't get to see maybe. Again I'm saying why मुश्किल, because it is the calculative part, not the problem is difficult. So it's important. What do you have to find out? Find final velocities of both. अच्छा, मुश्किल और करना होगा ना तो एक बॉल को छोटा ले लो, एक बॉल को बड़ा ले लो, है ना, तो और मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा. दैट्स द होल आइडिया. कोई बहुत वैसी चीज नहीं है. बताओ बताओ बताओ, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? टेल मी. बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, लॉस इन एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकती है, सब पुरानी चीजें. I want you to first understand कि after collision how to apply the equation, which is the important part for us. इस किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? पहले तो ये बताओ. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट? है ना, दो बॉल्स हैं जो कुछ अजीब से डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, एंड व्हाट वी वांट इज वी वांट टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ. अच्छा, मैं तुमसे केवल अभी ये चाहता हूँ, डोंट सॉल्व इट पूरा, ट्राई टू राइट डाउन जितना मैंने ये काम करा है कि फाइनल वेलोसिटीज कैसे होंगी, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना, और ई की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, और किसके अलोंग लिखेंगे. जो जो तुमने चीजें बताई हैं उसको बस तुम्हें एक बार थोड़ा सा समझ, थिंक, ट्राई इट आउट. तब तक टेक सम टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम. तो तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ट्राई राइटिंग द इक्वेशन. ये बॉल क्या,
ऐसे मैं टाइम पास कर रहा हूँ, किसी कोई मुझे बस केवल थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहेगा कि हाउ वन इज स्टार्टिंग, जिसको भी थोड़ा सा चीज समझ में आई हो। अभी मैंने कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी जिससे मैंने तुम्हें हिंट दी हो, मैं केवल अभी डायग्राम बना रहा हूँ। कोई वॉलेंटरली मेरे को हेल्प करना चाहेगा, जस्ट केवल वॉलेंटरली। तो इस बार मुझे इसका आंसर याद नहीं है। आंसर एक्चुअली ना बहुत थोड़ा सा वो आएगा, क्योंकि कुछ हाँ रूट थ्री तो आएगा ही आएगा। अच्छा क्या किया है तूने ये बताएगा एक बार। सर मैंने पहले हम्म। एंगल मतलब इसका कोलिजन के बीच का ओके, डिग्री है कितना आया? 30 डिग्री। ओके वेरी गुड, एक एक करके स्टेप, एक मिनट समझो ध्यान से। अभी जब मैंने उनसे अभी बोला कि सारी वेलोसिटीज को पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग निकालो, मतलब मैं इनडायरेक्टली तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ भाई इस फोर की वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालो। तो जब तक एंगल नहीं पता होगा आई वोंट बी एबल टू डू दैट। तो एंगल पता करने के लिए क्या तरीका है? ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखो, ये जो थोड़ा सा जो मैं ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, सी दिस ट्रायंगल, ये जो मैंने डायग्राम बनाया दिस इज बिफोर। काफी खराब कलर है, दिख ही नहीं रहा है, एक सेकंड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट ये मेरा डायग्राम है। तो सी दिस थिंग, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यस। क्या मुझे ये आर गिवन है? यस, दिस इज आर। और ये हमारे पास सेंटर है एक का, ये दूसरे का सेंटर है। इफ आई से दिस एंगल टू बी थीटा, तो कैन आई से मेरे पास ये मुझे पता है आर। अच्छा बहुत गंदगी करूंगा तो मैं बाद में नहीं दिखेगा, ठीक है। और दोनों को सेंटर को मिला रहा हूँ तो वो टू आर है। तो कैन आई से साइन थीटा मेरे पास आ रहा है आर अपॉन टू आर, which is coming out to be 1/2 and which is coming out to be theta is coming out to be 30 डिग्री। एक काम मेरा ही खत्म हो गया, दैट एंगल इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। मतलब अच्छा ये मैंने फिर से डायग्राम बनाया है क्योंकि वो बार बार सर्कल स्फीयर में ना समझ में नहीं आता है। तो ये वाली, ये 2 kg बॉल, ये 4 kg बॉल, बिफोर, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिफोर, बिफोर व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, दिस इज 30 डिग्री। तो ये वाला भी 30 डिग्री, ये मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड से, एंड दिस इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड। आई होप टिल यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही होगी सबको। तो हमने क्या बोला, हमें पहले सबसे पहले ऑल द वेलोसिटीज हैज टू बी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब ये जो फोर है इसका इसका अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखते हैं, हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा इतना सुंदर बनाने के बाद भी जगह नहीं दिख रही है, समझना ध्यान से। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मेरे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 4 का cos 30। क्या मैं डायरेक्टली वैल्यू डालता जाऊँ या फिर, अच्छा अभी कॉस लिखते हैं एक बार समझना, 4 cos 30 बिफोर कोलिजन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर वाली कैन आई से 4 sin 30 हो जाएगी, एक कॉस हुआ तो दूसरा वाला साइन हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड का जो ये है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 का cos 30, और बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला हो जाएगा 2 का sin 30। बोलो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है सबको? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मतलब केवल बस इतना एक एक स्टेप समझना, बिल्कुल भी डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, क्विकली टेल मी। इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है अभी तक? देखो आराम से देखो, बिल्कुल इज्जत से, इसीलिए डायग्राम बहुत ही नीटली बनाया है सो दैट कि एक ही प्रॉब्लम में सारी चीजें समझ में आए। हेलो सर। हाँ बोल। सर साइन थीटा आर अपॉन टू आर कैसे हुआ? ये जो तेरे को हाईलाइटेड ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस हाँ। पॉइंट को बोल रहा हूँ ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये मतलब परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी। अब देखो डायग्राम को वापस से, बीसी इज आर, एसी ये सेंटर से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर। ओके सर, तो रेडियस दोनों का आर है। ओके। रेडियस तो दोनों का आर है, ये हाँ तो दिख ही रहा है ना यहाँ से, हाँ है हाँ। ना। सही है ना ओके अभी? सर। ओके तो आफ्टर, हाँ
में e की इक्वेशन लगा, मोमेंटम का इक्वेशन लगा, ओके, और y के कंपोनेंट में क्या किया, जो दूसरे वाले कंपोनेंट में क्या किया, y को छोड़ दिया, उसको वेरी लास्ट गुड, में लिया। लास्ट में लिया। ओके, समझना। तो अभी क्या बोला हमने, अभी क्या बोला कि जब भी हम इक्वेशन लगाएंगे ई की इक्वेशन किसके अलोंग लगनी है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पहली चीज कह रहा है आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास दूसरे कंपोनेंट है, ये मेरी क्या है, अगेन आई एम सेइंग दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो भी कुछ होगा वो हेड ऑन कोलिजन जैसा है, बिल्कुल हेड ऑन एग्जैक्टली। जो उसके परपेंडिकुलर आफ्टर कोलिजन, जो ये 4 साइन 30 है, वो 4 साइन 30 का साइन 30 बना रहेगा, और जो ये 2 साइन 30 है दूसरे वाले का आफ्टर कोलिजन, ये एग्जैक्टली 2 साइन 30 बना रहेगा। तो अब तुम सोचो, ये दोनों भूल ही जाओ इसको, तुम ये सोचो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसकी 4 cos 30 है, इसकी 2 cos 30 है। हमने अभी अभी क्या बोला था, यार फाइनल वेलोसिटी को मेरा मन होता है, अगेन अगेन देयर इज नो रूल बुक, मेरा मन होता है इसको मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में मानूं, सच दैट मुझे इक्वेशन लिखने में तकलीफ ना हो। इस वाले को मैं बोल रहा हूँ पीछे वाले की फाइनल वेलोसिटी को अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v1, और इसको मैं बोल रहा हूँ अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट v2। और क्या ये दोनों 90 डिग्री? यस, 100%, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के वाली वेलोसिटीज चेंज हो रही है, बाय डिफॉल्ट दूसरी वाली वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है। सो व्हाट जस्ट सिद्धेश, पता है तुम्हारा एक आंसर आई गेस राइट है, अगर शायद मतलब अगर तुमने ये काम करा है तो पहली चीज अच्छे समझना, आफ्टर कोलिजन में करूं क्या। मेरे लिए आफ्टर कोलिजन इज बिहेविंग हेड ऑन कोलिजन फॉर दिस मतलब ये 2 kg और 4 kg को अगर अपने दिमाग में रखूं, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है मेरे पास, 2 इंटू, इसको लिख रहा हूँ ठीक। अच्छा, अब मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, समझना, मेरे किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, यस, मैं एम अज्यूमिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। तो 4 इंटू प्लस 4 cos 30, ये जो 2 kg सॉरी जो ये 4 kg वाला है, ये हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, तो कहना है यहाँ पे लिखूंगा -2 cos 30 बराबर, फाइनली 2 kg वाला v1 से जा रहा है तो मैं लिखूंगा 2v1, और 4 kg वाला v2 से जा रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 4v2। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है, ई की। ई की इक्वेशन में से क्या बताती, किसके अलोंग है, प्लीज रिमेंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सारी वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना है, इसीलिए मैंने ये अलग अलग कर दिया है। इसीलिए थोड़ा सा ना ओब्लिक कोलिजन में एक डायग्राम बनाना थोड़ा सा सेफर होता है, कि यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन आगे वाला फिर से पीछे वाले से ना टकराए, मतलब 4 kg वाला हैज टू गो विद द ग्रेटर वेलोसिटी कंपेयर टू 2 kg वाला। यहाँ पे लिखूंगा मैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, जो हमारा होता था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये 4 cos 30 से उसकी तरफ आ रहा है, वही वाला, एक बॉल इधर आ रही है 5 से, दूसरी वाली 3 से इधर आ रही है, तो दोनों की वेलोसिटी को डायरेक्टली ऐड कर दो, और u1 माइनस u2 दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो कहने से मैं डिनोमिनेटर वाला टर्म 4 cos 30 प्लस 2 cos 30 लिखूंगा। क्या मुझे ई की वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई थी? यस, बिल्कुल, कहाँ गया, 1/3। ई की वैल्यू मैं यहाँ पर इक्वेट करूंगा 1/3। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। क्या v1 और v2 में दोनों में रिश्ता आ गया है क्या, बिल्कुल सही, मतलब दो इक्वेशन आ गई है क्या, है ना। इसको एक तो cos 30 √3/2 है ना। अच्छा, अगर विष्का जी सिद्धेश तुम दोनों की अगर कोई एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आई है तो लेट मी नो, है ना, और तुमने v1 v2 सॉल्व किया है, क्या यही इक्वेशन आई थी दोनों की? यस तो सर। बिल्कुल ही सेम आई है, कोई गलती नहीं है ना, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा आंसर टू बी राइट, अदरवाइज वो सॉल्व करना है। तो क्या आ रहा है v1 और v2, v1 मतलब पीछे वाले को मैं v1 बोलता हूँ, या ऐसे मेरा सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बट लेकिन हाँ बता, आगे हैं मेरी इक्वेशन सही है, मेरा आंसर रॉन्ग है। यार। आंसर तो रॉन्ग इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने फाइनल पूछा था, तो मैं फाइनल आंसर और 2 kg अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करना पड़ेगा। सर वो भी किया मैंने एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन में दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली है। अच्छा, तुमने ये भी पॉजिटिव ले लिया है, ये हाँ गलत ले लिया, मतलब यहाँ पे प्लस ले लिया है ना। हाँ। अच्छा अच्छा, सिद्धेश तूने सही किया है क्या, ये यहाँ पे माइनस लिया था कि नहीं लिया था? अगर माइनस yes, लिया तुम था। लिया था, तो क्या है v1 v2 बता। v1 -2 √3/3 और v2 टू √3/3 टू टू माइनस, -2 √3/3 हाँ अच्छा, -2 √3/3, अच्छा मतलब 2/√3, -2/√3, ओके। एंड v2 क्या आ रहा है, √3 1/√3 1/√3, ओके।
हाँ ऐसा ही कुछ, हाँ ओके, मोस्टली ये सही लग रहा है, हाँ ओके। सो ये आया, ये v1 v2 आया, तो दिस इज नॉट माय आंसर, प्लीज एवरीवन अंडरस्टैंड। सो माय फाइनल वेलोसिटीज, अच्छा ये प्लीज एक बार वापस से सॉल्व कर देखना, बट जहां तक मोस्टली सही होगा ये, अगर इक्वेशन सही लिखी फिर तो कुछ बचा नहीं। तो हमारे पास जो v1 है 2 kg की अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी आ रही है, अच्छा -2/√3 आ रही है, 1 सेकंड, है ना, मतलब जो मैंने डायरेक्शन मानी है उसकी ऑपोजिट आ रही है। तो हमारा जो 2 kg वाला है, क्या मैं एक बार और बनाऊं, आई गेस समझ में आ चुका है तुम्हें शायद, जो हमारे पास बिल्कुल फाइनल वेलोसिटीज आ रही है, v1 पीछे आई है, कितनी आई है 2/√3, और ये वाली जो वेलोसिटी थी 4 sin 30, 4 sin 30 मतलब 1/2, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जो हमारा दूसरा वाला है विच इज 4 kg, 4 kg की v2 जो आई है, जो हमने डायरेक्शन मानी थी, इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, तो वो 1/√3 ही रहेगी उसी डायरेक्शन में। और जो 2 sin 30 थी, 2 × 1/2, तो ये हमारे पास है 2 kg, और ये है 4 kg, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटीज ये आ रही है। इफ यू वांट, or if they are asking find out the speed, then under root of this square plus this square is your answer, है ना। इसकी फाइनल स्पीड, दोनों का अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज योर आंसर। ओनली केस तुम्हें समझ में नहीं आया होगा अगर तुम बीच में लॉस्ट हो गए होगे, बट अदरवाइज एक एक स्टेप बहुत इज्जत से करा है हमने, है ना। इफ जस्ट इन केस अगर किसी को डाउट लग भी रहा है, अगर कुछ अभी लग रहा है, यू कैन आस्क, अदरवाइज एक बार तुम पूरी चीज को ना, ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम यू कैन सी द अगेन, इफ यू आर गेटिंग द रिकॉर्डिंग, है ना, देन यू कैन अगेन सी ओनली दिस, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो अभी पूछ सकते हैं ऐसे फट से, बताओ बताओ बताओ। अच्छा इसमें कितनी चीजें पूछने, पूछने को तो कुछ भी पूछ लेंगे फिर इसमें, है ना, बट कि बताओ फाइनल एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है ना, उसमें तुम्हें ये दिमाग लगाना ही नहीं है। जो ये वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये एनी विच वे सेम है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो जो हमने हेड ऑन कोलिजन पढ़ा है ना, जो उसका एनर्जी लॉस पढ़ा है, या फिर हमने पूछा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे समवेयर इन बिटवीन, एक बार ऐसा। तो प्रॉपर पूरा हेड ऑन कोलिजन है, जस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग इज लिटिल डिफरेंट। पूछो पूछो, किसी को डाउट लग रहा है क्या, जल्दी। नहीं तो हम एक आध प्रॉब्लम कर सकते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा कि कुछ और समझ में नहीं आया ये पार्ट, क्योंकि दो ही टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। एक ये वाले जहां पर हम उसको ऐसे स्ट्राइक कराते हैं, है ना, जहां पर एक वॉल होती है ओब्लिक में मोस्टली, वो बहुत इजी है कि उसके परपेंडिकुलर वाला वॉल के या ग्राउंड के परपेंडिकुलर वाले में ई से मल्टीप्लाई करो एंड ट्रीटेड पुरानी वाली कहानी, है ना। इसमें थोड़ा सा एंगल एंगल का चक्कर आ जाता है, बिकॉज हो सकता है दोनों का बॉल का साइज अलग अलग हो, सॉरी, एक सपोज 2r होता, तो हमारे पास साइन थीटा r/3r जैसा कुछ हो जाता। तो वो ये वाला डायग्राम बहुत इज्जत से बना दे बिफोर दैट, सो दैट यू गेट द एंगल क्लियरली। जल्दी बताओ, किसी को डाउटफुल लग रहा है क्या। एक आध प्रॉब्लम मैं और बता देता हूँ, बट लेकिन हाँ, किसी को कंसेप्चुअली कुछ ऐसा लग रहा है, यार ऐसे मत करो, ऐसा तो हो नहीं सकता सबको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, कंसिडर टू बी द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लेकिन हाँ बताओ। आ गया समझ में, बड़े आ गया हम, जल्दी जल्दी जल्दी। एनी डाउट इन दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अगर लग रहा है तो प्लीज एक बार गो एंड सी दिस अगेन, है ना, you'll get a better idea, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पता है ऐसे वाले होते हैं जो पुरानी चीजों से मिक्सअप करे जाते हैं, वो होते हैं मैं तुमसे बोलूँ प्रोजेक्टाइल से मिक्सअप करना चाहूंगा प्रॉब्लम, मैं बोलूँ कैसे है ना, तो समथिंग लाइक दिस। मैंने बोला एक प्रोजेक्टाइल को, पहले एक सिंपल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो करा यू स्पीड से थीटा एंगल पे, यहाँ पर एक वॉल थी, ये प्रोजेक्टाइल टकराया और वापस आया, ठीक है। हमसे पूछा गया है, सपोज सपोज ये वॉल एग्जैक्टली r/2 डिस्टेंस पे है, विच इज द रेंज का आधा। तो हमें क्या पता है, प्रोजेक्टाइल टकराएगा बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, अभी टकरा के लौटेगा, मुझे नहीं पता कहाँ गिरेगा क्या, फाइनली कुछ ऐसा फील तो हो रहा है, कुछ ऐसा टाइप का मोशन होगा। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी, है ना, ये देख के तो तुम समझ में आ रहा है, ऐसे गया वापस लौटा, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। या एक्चुअली मुझे पूछना चाहिए था, ओके चलो ठीक।
अच्छा पता है, मैं और थोड़ा सा मुश्किल करूँ, कहीं पे भी टकरा रहा है, अब मुझे नहीं पता ये r/2 है कि नहीं। ये काम का थोड़ा सा इजी तो समझ नहीं आ रहा, आप मुश्किल ही करे जा रहे हो। अच्छा ये अगेन लॉजिकली सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गंदा करता हूँ प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि वॉल कहाँ है, बट तुम्हें ये तो फील हो ही रहा है यार कि टकराएगा और फिर लौट के तो कहीं ऐसे ही आएगा। अरे कर्व बन जा भाई। हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, मतलब वो कैसा आएगा आई डोंट नो, मतलब अजीब सा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। ऊपर से नीचे तक गिरने का टाइम कितना होगा? u given है, theta given है, and if you want you can take this value to be d। ये d given है, और कुछ जरूरत होगी क्या इसमें? g तुम्हारे पास हमेशा होता ही है, और कुछ जरूरत होगी नहीं वैसे। यस ये सब थोड़े से एससीबी वाले ही प्रॉब्लम है, ये ऐसे वाले प्रॉब्लम नहीं है जो अभी बहुत ही सुपर डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, बट हाँ आइडिया मोर और लेस इट इज द सेम। कैसे करना है सो तो अरे खत्म हुआ नहीं प्रॉब्लम और दूसरा दे रहा हूँ। जैसे ऐसे बहुत लोगों के मन में विचार आता है क्या? कोई 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 अच्छा, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है देन तुम्हारे प्रोजेक्टाइल में दिक्कत है। अच्छा सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने दिया नहीं, हाँ ये दिया है, ये माइट आल्सो बी नीडेड और नॉट, आई डोंट नो। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द बॉल इज जी। You have 30 more seconds बस। कोई नहीं बताना चाह रहा है मेरे को, ऐसा करोगे तुम लोग? ओ भाई साहब, जान निकाल दी भाई स्टार्ट में, कितना इतना बड़ा आंसर लिखने में तेरे को 30 सेकंड लगे होंगे कम से कम। मुझे बताओ किया क्या तुमने? सर मैंने पहले नॉर्मल ये कैलकुलेट किया, फर्स्ट वाला नॉर्मल कैलकुलेट किया प्रोजेक्टाइल, u cos थीटा इज इक्वल टू d बाई टी किया, उससे इनिशियल टी निकाला, फिर मैंने जो जो ये लिख रहा है, जो जो ये बता रहा है, मैं एक बार लिखता जा रहा हूँ। सो व्हाट ही इज सेइंग कि सर मैंने यहाँ से यहाँ तक का पहुंचने का टाइम निकालना, सपोज दिस इज माय t इज इक्वल टू 0
ये आई एम सेइंग लेट्स से t इज इक्वल टू t1, ही इज सेइंग कि मैंने ये टाइम निकाला व्हिच इज d अपॉन u cos थीटा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब तक मैं वॉल तक नहीं पहुंच रहा हूं तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है d, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज ऑलवेज u cos थीटा। सो दिस इज व्हाट ही हैड डन। अभी सही गलत की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मुझे सच में पूछा जाता कि बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सो इट इज नथिंग बट d अपॉन u cos थीटा, कुड बी वन ऑफ द टॉपिक। ओके, हाँ आगे बढ़े। सर फिर मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा के ये ढूंढा, y कंपोनेंट हाइट ढूंढी उस पॉइंट पे। ओके ठीक है, चल मतलब हाँ लॉजिक सही है अभी तक। तो रीजन की हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाई जो कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होती है। हमने x की जगह यहाँ पे डाला d, है ना। बाकी सब मुझे, क्योंकि इस जगह के मुझे y निकालना था, तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाई और मैंने ये y ढूंढा। ओके, फिर क्या किया? सर फिर मैंने सेकंड प्रोजेक्टाइल को सॉल्व किया जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ y 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ y 0 है, ये कैसे पता? हाँ ओके सो अच्छा, एक तो गलती हो चुकी है यहाँ पे, बट लेकिन सुनना ध्यान से, बट हाँ यू कैन डू दिस थिंग, स्टिल डू दिस थिंग। तो जब ये प्रोजेक्टाइल एक तो मेरा टकरा रहा होगा, तो क्या हम इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा होगी? बिल्कुल 100%। y डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी वेलोसिटी, है ना। अच्छा पहली चीज क्या ये सबको समझ में आ रही है? डायग्राम देख के y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी उस टाइम पर। जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, मैं उसको vy लिख रहा हूँ, वो चेंज नहीं होगा। मुझे बताओ भाई, बहुत आंसर जो हमारे पास होता था, जो हमने बचपन में पढ़ा था, ये 2u sin थीटा बाई जी होता था। u sin थीटा क्या होता था? हमारा y डायरेक्शन की वेलोसिटी। हमारा प्रोजेक्टाइल का टाइम केवल y डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है, उसको x से लेना देना ही नहीं होता है। अगर उसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं हो रही, व्हेन आई एम सेइंग थ्रू आउट द मोशन, यहाँ से यहाँ जाने में और या फिर यहाँ से यहाँ जाने में, अगर मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो मेरे को टाइम उतना ही लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। प्लीज अंडरस्टैंड। ये इक्वेशन, ये रिजल्ट कहाँ से आता था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इफ आई एम अप्लाइंग दिस इक्वेशन इन y डायरेक्शन, क्या मेरा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे जाने में क्या हमारे पास एग्जैक्टली सेम है? यस, विच इज जीरो। क्या थ्रू आउट द मोशन हमारी, क्या कहीं पर टकराने की वजह से y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हुई? क्या नहीं हुई? तो हमारे पास ये वही भी u sin थीटा ही रहेगा, टी टी ही रहेगा, प्लस हाफ ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। माई टाइम विल कम आउट टू बी द सेम, चेंज हो गई नहीं यार। वो तो जस्ट तुमने आंसर दिया, कब दिया? अच्छा मैंने अभी बताया, अभी दिया क्या? Okay. अगर अगर ये लॉजिक, मतलब लॉजिक तो चलो आप समझ में आ ही रहा होगा। इफ यू हैड गिवन मी द आंसर बिफोर आई स्टार्टेड, वेरी गुड थिंग, है ना। लॉजिक क्या है? क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला याद रखते हैं, बट हम फंडामेंटल ये भूल जाते हैं कि वो रिजल्ट आता कहाँ से है। वो रिजल्ट कम्स आउट टू बी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर हम ये बात करते हैं प्रोजेक्टाइल फेंका है थ्रू आउट द मोशन, क्या कांस्टेंट है? जी हाँ कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। क्या बाय एनी चांस बिकॉज ऑफ समथिंग क्या वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है? ना, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो जो टाइम पहले लग रहा था वही टाइम अभी भी लगेगा, उसमें फर्क क्यों आएगा? किस चीज में फर्क आएगा ना? अंडरस्टैंड, फर्क आएगा जो, अगर सच में यहाँ पे ई की वैल्यू को मैं 1 बोलता ना, जो ये पार्ट है, अंडरस्टैंड, अगर मैं तुमसे कहीं पर भी वॉल लगा दूं, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, वो सोचने वाली चीज है। अगर मैं कहीं पर भी वॉल लगाऊं, सपोज मैंने वॉल यहाँ लगाई, सॉरी दिस इज माय वॉल, अगर मैं तुमसे बोलूं ई की वैल्यू 1 है, तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज माय वॉल एंड आई एम सेइंग ई इज आल्सो 1। तो जो टकराने के जस्ट पहले जो इसके पास यू cos थीटा था और जो यू sin थीटा था, वो टकराने के जस्ट बाद केवल यू cos थीटा की डायरेक्शन चेंज होकर वो इधर हो गई है यू cos थीटा, और यू sin थीटा भी वही है। तो यहाँ पर अगर एक्चुअली मैं मिरर लगाऊं ना, तो जितना तुम्हें ये राइट वाला पोर्शन जैसा दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वो सिमिलर, अब वो बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जैक्ट, सॉरी सिमिलर वो बनेगा, अरे ना बन पा रहा मेरे से, समथिंग लाइक दिस। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरी रेंज होती थी ना, ये जितनी डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, जितनी जगह पे तुमने वॉल लगाई, अगर ये x है तो एग्जैक्टली वो पीछे की तरफ x डिस्टेंस पे गिरेगा। इफ e वुड हैव बीन 1, अगर e की वैल्यू 1 नहीं है तो जो यहाँ पर मिरर बनता उससे कम डिस्टेंस पे गिरेगा, क्योंकि उसकी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? eu cos थीटा के बराबर। तो अब वो थोड़ा सा पहले गिर जाएगा इफ आई एम पुटिंग अप अ मिरर हेयर। अगर e की वैल्यू 1 है तो जो पोर्शन हमारा राइट में था वही को उसको एग्जैक्टली कॉपी कर दो ऑन द लेफ्ट। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है?
एंड टाइम एग्जैक्टली सेम रहेगा, इट डज नॉट मैटर। मैं तुमसे अगर यहाँ पे बोलूँ ना, तुम कितनी भी बॉल लगा दो, समझना ध्यान से, कितनी भी बॉल, यहाँ पे 2 बॉल लगाई मैंने, फेंका, बॉल गई ऐसे, फिर गई ऐसे, फिर गई ऐसे, टकराई ऐसे, कराई, फाइनली जब भी वो गिर रही है, टोटल ड्यूरेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी ही रहेगा। ट्राई एंड फील इट। सुनने में अजीब सा लगता है सर ऐसा कैसे हो रहा है, बट इट विल हैपन बाय द प्रोजेक्टाइल वाला लॉजिक। व्हाट वाज प्रोजेक्टाइल वाला लॉजिक? वेयर वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी इट इज ओनली गवर्न्ड बाय जी, उसके हिसाब से कम या ज्यादा हो रहा है। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूँ बीच में जहां पर ये चेंज नहीं हो रहा है, then time of flight will remain exactly the same. Any doubt? Anyone in this? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। समझ में आया? किसी को डाउट लग रहा है तो बोल दो बस। क्लियर है? दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू नाउ। नाउ इज विल हैव टू थिंक अबाउट इट। यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला है, अब प्रॉब्लम में तुम्हें नहीं बोला जाएगा ओब्लिक है या हेड ऑन है, तुम्हें प्रॉब्लम पढ़ के करना है। अब अभी तक मैंने क्या बोला, यार बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दिए होते थे तब हेड ऑन या ओब्लिक डिसीजन, यहाँ पे मैंने छोटे ऑब्जेक्ट दिए हैं और बोला है कि फाइनली बोथ आर मूविंग एट अ 45 डिग्री विद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मतलब कुछ तो हुआ, और हमें वैसे नहीं दिए बड़े बड़े, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। लॉजिक वही है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ, वेलोसिटी ऑफ बोथ, एंड यहाँ पर ई की वैल्यू भी निकालनी है, फाइंड ई आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट। So this is the homework point. So there are 2 homework problems that do it. दोनों अच्छे प्रॉब्लम है। थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम का मतलब, जब भी मेरा मतलब होता है ना कंसेप्चुअली इट्स गुड, नॉट वेरी डिफिकल्ट कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है ना। हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन हो, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, है ना, टू डू दैट कैलकुलेशन। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सारी? सो मोरलेस दिस चैप्टर इज डन, मोरलेस क्या खत्म ही हो गया। सो सेंटर ऑफ मास इज डन, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट समथिंग एल्स। आई सी कि क्या स्टार्ट करना है, आई हैव टू डिस्कस विद गौरव सर, है ना। तो मैं एक बार गौरव सर से डिस्कस करके कि क्या अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट वो सब जगह पे कॉमन है। बट सेंटर ऑफ मास इज डन पूरी तरह से, है ना। प्लीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। अगर कहीं पर भी कुछ भी हो, गो बैक एंड रिवाइज दिस अगेन एक बार। आज वाली चीजें जो स्पेसिफिकली ओब्लिक में नॉर्मली एट सीन की इस टाइप के प्रॉब्लम्स में समझने में दिक्कत होती है, तो ये चीजें थोड़ा सा एक बार और देख लेना अगर लग रहा हो, ठीक है। चलो ओके गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास है हमारी, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।